नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज एनआर के बी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नमबियाल जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। So Pradeep ji, the Prime Minister was here in Mumbai. Then he went across to Amravati. He went to Visakhapatnam. Then from there he went to Amravati. Yes. And amazing. I mean, he inaugurated so many things. Waves over here. There is Mukesh Ambani's Waves, and then the Adani port in Kerala, and then of course the Andhra Pradesh capital, the new Andhra Pradesh Everything. capital. Yeah. Fantastic. All plans right, as you say, sir. All plans right on time. There's no change. The threat of the attack and the planning of the attack, he has left it to the armed forces. He says it's your choice, your time, and your place. But the only thing is, people are getting somewhat impatient. They want action now. They're just waiting कि भाई क्या हो क्या रहा है, इतनी देर क्यों हो रही है कि मतलब लोगों को everybody's blood is up. Let's be very clear, and they want action now, and they're not really sure what's happening. So, that's the problem. I ideally believed, as we were discussing, I ideally believed a strong prime minister would have all these plans right on the table, that the next terror attack after Pulwama, if it happens, our immediate response is going to be this. We on our own and from our allies are going to track the hideouts of all these terrorist leaders. चाहे वो लश्कर तोयबा के हो, जमात दवा के हो, अलग अलग TRF के हो. What is our intelligence agencies doing? You should have had their positions on the map given to the Air Force. I mean, we thought that our defense is in such mode, always on the attack mode, that you strike here and we immediately strike there. Now this is that after the attack we'll think, we'll ponder, we'll get global acknowledgement, global permission to attack. What is this? I mean, this is what we we've after 2011 we rejected that. The people rejected that government for a long time after 5 years. So that a new team comes over who has an immediate response to any kind of terror attack. Yes, sir. There has been no retaliation so far. All that there has been have been meetings, CCS meetings, that is Cabinet Committee on Security meetings. There have been 3 of them. और उन 3 में से क्या निष्कर्ष निकला? ये निकला है कि भाई हमने फौज के ऊपर छोड़ दिया, आपको जहां मर्जी जैसे मर्जी अटैक करना हो आप करिए, लेकिन वो कब होगा कैसे होगा किसी को मालूम नहीं है। दूसरी चीज क्या हुआ है कि वो जो चिनाब का पानी बंद कर दिया था ना प्रदीप जी, सलाल डैम पे, yes, आज वो पानी खोलना पड़ गया है क्योंकि बड़ी जबरदस्त बारिश वहां पर हुई है। तो द वाटर वाज अबाउट टू ब्रेक द डैम वॉल्स। वो जो डैम है सलाल डैम, उसकी दीवारें टूटने वाली थी, तो वो खोलना पड़ा। तो अभी तक जो आप डैम की तस्वीरें दिखा रहे थे ना, अब वो सूखा नहीं है। और पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हो रही है कि देखा अल्लाह भी हमारे साथ है, देखा आपको खोलना पड़ा। बट बाय द वे ओवर देयर, लेट मी टेल यू दिस, दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। अभी जो आपने पानी वहां पे छोड़ दिया है ना, जैसे ही पानी का रुख जरा कम होगा फिर आप बंद कर देंगे, फिर आप छोड़ेंगे, विदाउट वार्निंग आप छोड़ेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए उधर मालूम नहीं पड़ता कि कब पानी छोड़ने वाले हैं, you never know what's going to happen as far as the other side is concerned. So all I'm saying is, at the moment the Navy is on the high alert. The Navy is in the Arabian Sea. The Indian Air Force has been carrying out sorties near the border. The Indian Army is very much on the, they've been performing lots and lots of exercises. But people wait for retribution. Their loved ones have gone. 26 लोग मरे हैं सर. It's not a small thing. क्या सर ये सिर्फ धमकी का दौर चालू है। मोदी जी ने धमकी दिया, उसके 2 दिन बाद अमित शाह ने धमकी दिया, उसके 2 दिन बाद राजनाथ सिंह ने धमकी दिया, फिर फौज पे छोड़ दिया कि आप नाउ दिस टाइम दिस इज नॉट वी आई मीन लोगों को क्या पेशेंस, जैसे आपने कहा कि पेशेंस जो है इट्स नाउ रनिंग थिन, इट्स रनिंग अवे एंड पीपल वांट एक्शन। वेयर इज द एक्शन? दैट इज व्हाट एवरीबॉडी इज। क्योंकि जहां तक मोदी जी का सवाल है, हर एक को अपेक्षा ये है मोदी जी से, जैसा आपने कहा कि अगर कोई आतंकवादी हमला होता है तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पहली प्लेस में होना चाहिए। अगर यहाँ पे हमला होगा तो हम यहाँ पे रिटेलिएट करेंगे, अगर यहाँ पे हमला होगा तो हम ऐसे करेंगे। वी विल एस्केलेट मैटर्स इन दिस वे, 1 2 3 4 इस तरीके से हम लोग एस्केलेट करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे कि यहाँ लोगों को दिख नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। हो सकता है अंदर से बहुत कुछ हो रहा हो, क्वाइट पॉसिबल, वी मे नॉट बी नोइंग, एंड वी आर नॉट लाइक दोज अदर चैनल्स that keep speculating and so on and so forth. By the way, that is yesterday's breaking news. जो आप probably lone wolf attack आप जो लगा रहे हैं ना,
वो दारू वाला साहब ने कल कहा था, ये जो ब्रेकिंग न्यूज अभी आप लोग लगा रहे हैं, प्लीज हटा दीजिए. Why have you put this? I don't understand this. Why are you putting yesterday's breaking news today? Can you please stop it? I mean, this is absolutely crazy. I don't really know what's happening over here. These guys, are they asleep or what? Or are they still waiting for Mr. Modi to order an attack on Pakistan? In the meantime, मोदी जी ने क्या किया? प्रदीप जी, कास्ट बेस्ड सेंसस ऑर्डर कर दिया, यानी जातीय जनगणना ऑर्डर कर दी गई है. नाउ बिकॉज ऑफ द पहलगाम अटैक, पहलगाम में क्योंकि आतंकवादी हमला हुआ, इसकी वजह से कांग्रेस जो है वो ज्यादा सेलिब्रेट नहीं कर पाई है. वरना कांग्रेस की जो सेलिब्रेशंस हैं, they would have known no bounds because it's a major victory for them. They've been asking for this now for the last 3 years. I think slowly सब जगह celebration चालू कर दिया. The I hope Pune, so. today Pune is challenging. Right. And various other places, the Congress committees have been. Whereas I personally, let me tell you what is my personal view. मेरा खुद का व्यक्तिगत विचार ये है, we should trust the government. Let me tell you this, and we should trust the armed forces. वो करेंगे और ऐसी चीज करेंगे जो परमानेंट होगी, मुझको ऐसा लगता है. लेकिन लोगों में मतलब सब्र की बहुत कमी होती है. दे वांट एवरीथिंग नाउ, इनफैक्ट दे वांट एवरीथिंग यस्टरडे. वो तो होने वाला नहीं है. इस बार जो भी होगा बहुत प्लानिंग से होगा, बड़ा योजनात्मक तरीके से होगा. लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी है प्रदीप जी कि सिर्फ पहलगाम के बारे में बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है कि अमरावती में नया कैपिटल बन रहा है आंध्र प्रदेश का. सर एक नया पोर्ट जो है इनॉग्रेट हुआ है. चलिए अडानी जी ने बनाया है. चलिए अडानी जी ने ही बनाया, लेकिन हुआ तो है, सीधी सादी बात है. और उसके अलावा कल वेव्स जो ग्लोबल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा ग्लोबल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ एशिया, दैट हैज बीन लॉन्च्ड yesterday, which is great. And the caste based census. Let's go straight across to our guests. We have Rakesh Prajapati ji from Badaयूं with us. We have Shailesh Pandey ji of the BJP also with us. Rakesh Prajapati ji is of course from the Samajwadi Party, and Suresh Chandra Rajan ji of the Congress. Suresh Chandra Rajan ji, namaskar. नमस्कार प्रजापति जी, नमस्कार. सभी को नमस्कार. शैलेश पांडे जी, आपको भी नमस्कार. पांडे जी नमस्कार. और राकेश प्रजापति जी, आप तो बड़े खुश होंगे अब के जातीय जनगणना के ऑर्डर्स आ गए, आदेश दे दिया गया है जातीय जनगणना को लेकर के. आप और सुरेश चंद्र राजन जी तो बहुत ही खुश होंगे. लेकिन पहले मैं आपसे शुरू करता हूं कि अब आपको लगता है कि वास्तविकता में जो प्रजापति कुमार समाज को जो पहले मिलना चाहिए था, कि वास्तविकता में अब मिलेगा? आपको लगता है ऐसा? क्योंकि ये अनाउंसमेंट मुलायम सिंह यादव जी ने भी की थी, और उसके पहले मतलब प्रजापति कुमार समाज शुरू से अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित लिस्ट में ही था, तो उसको बाहर निकाल करके ओबीसी में डालने का मतलब क्या था? अब आप बताएं सर, आपको लगता है कि कास्ट बेस्ड सेंसस की अनाउंसमेंट के बाद प्रजापति और कुमार समाज को वास्तविकता में इंसाफ मिलेगा? आप बताएं सर. प्रजापति जी. राजीव जी, जिस मोड़ पर भारत देश इस समय खड़ा हुआ था जी, उस मोड़ पर ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कास्ट सेंसस लेके आए हैं, स्वागत योग्य है. लेकिन इस समय पूरा देश पहलगाम को देख रहा था, पूरा देश पाकिस्तान पर कार्रवाई चाहता था, पूरा देश पाकिस्तान को नक्शे से गायब कर होते हुए देखना चाहता था. पूरा देश पुलवामा, पहलगाम, उड़ी, गुरदासपुर, अमृतसर और पठानकोट जैसी जो घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं का बदला चाहता था. पूरा देश इस आशा भरी नजरों से देख रहा था कि मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी कुछ न कुछ करेगी और इन टेररिस्ट को और विशेष रूप से पाकिस्तान को सबक सिखाएगी. लेकिन वाह वाह वाह, क्या मौके पर जातीय जनगणना लेकर के आए. ये वही जातीय जनगणना लेकर के आए जो सदन में कहते थे. इनके कई नेताओं के बयान सुनवा दूंगा तो आप ही वो हो जाएंगे. नितिन गडकरी जी कहते थे, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात. अब पता नहीं लात किसमें मारेंगे, ये तो नितिन गडकरी ही जाने. योगी जी कहते थे, जो जाति की बात करते हैं वो सनातन विरोधी हैं. यानी कि योगी जी तो सीधा सीधा ये कहते थे सनातन विरोधी हैं. अनुराग ठाकुर क्या कह रहे थे सबने सुना था, किस तरीके से अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी को टारगेट किया था जाति के ऊपर.
और भी इनके बहुत सारे नेता हैं जो जाति जनगणना को लेकर के कभी भी पॉजिटिव व्यू नहीं रखते थे, लेकिन देश का ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने पहलगाम को सेकेंडरी मुद्दा बनाने के लिए जाति जनगणना लेकर के आए। रही बात प्रजापति समाज की या कुम्हार समाज की, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था और उन्होंने कहा था कि संविधान तो बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन शर्त यह है कि संविधान को लागू करने वाले लोग और संविधान को चलाने वाले लोग किस मानसिकता से इस संविधान को चलाएंगे, ये इस पर निर्भर करता है। और वही देश देख भी रहा है कि 2014 के बाद संविधान को ना मानने वाले लोग इस देश के कुर्सी पर बैठे हुए हैं और किस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया जा रहा है। ठीक यही कार्य जातीय जनगणना में होगा। मैं आज आपके चैनल पर राजीव जी और प्रदीप जी कहना चाहता हूं, आपके चैनल पर इसलिए कहना चाहता हूं कि आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, और ये देखिएगा ये जातीय आंकड़े में हेरा फेरी करने का काम किया जाएगा। जिस प्रकार से चुनाव की वोटर लिस्ट में ये हेरा फेरी करते हैं, जिस प्रकार से ये आंकड़ों में महाकुंभ के आंकड़ों में हेरा फेरी कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से जातीय आंकड़ों में हेरा फेरी करेंगे। सन 1931 में जब जातीय जनगणना हुई थी, कुम्हार समाज टॉप 10 में था, टॉप 10 में, यानी कि कुम्हार समाज की जो आबादी थी वो टॉप 10 जातियों में थी। आंकड़े आने दीजिए, अगर कुम्हार टॉप 10 में नहीं रहता है तो निश्चित रूप से मैं तो यही कहूंगा कि इनके जातीय आंकड़ों में हेरा फेरी है। और मैं तो सीधा सा कह रहा हूं कि मैंने तो आपके चैनल पर पहले भी कहा था, राजीव जी शायद आपको याद होगा, मैंने कहा था तेलंगाना में जिस प्रकार से राजीव रेड्डी जी ने 23% से आरक्षण बढ़ा करके ओबीसी को 42% किया है, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना कराएगी। वही सेंटेंस दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कब जातीय जनगणना कराएगी और जातीय जनगणना करा करके ओबीसी को 62% आरक्षण देने का काम करेगी। क्योंकि मेरा मानना यह है कि 1931 में ओबीसी 52% था, लेकिन जिस तरीके से ओबीसी की जनसंख्या बढ़ी है उस प्रकार से देखा जाए तो ओबीसी की जनसंख्या 62% से कम नहीं होगी। तो उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर जातीय जनगणना करा करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दी जाए और कम से कम ओबीसी को 62% आरक्षण देने का काम किया जाए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा करेंगे नहीं। ये केवल और केवल ध्यान भटकाने के लिए, केवल और केवल इस मुद्दे को भटकाने के लिए, केवल और केवल लोगों के ध्यान को पहलगाम से, पुलवामा से और उड़ी जैसी घटनाओं से हटाने के लिए जातीय जनगणना करके आए हैं। क्योंकि विपक्ष इन्हें घेरने का काम कर रहा था जातीय जनगणना पर, लगातार राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी लगातार इन्हें सदन से लेकर के सड़क पर घेरने का काम कर रहे थे। प्रजापति जी, अखिलेश यादव जी ने कहा यह जीत है, विक्ट्री है। अखिलेश यादव जी ने कहा 100% विक्ट्री ऑफ 90% पीडीए, 90% पीडीए का 100% विक्ट्री है। ये ऑपोजिशन की जीत है, ये राहुल गांधी जी की जीत है, अखिलेश यादव जी की जीत है, मोदी जी की जीत नहीं है। तो प्रजापति जी, अखिलेश यादव जी ने तारीफ किया है। प्रजापति जी, प्रदीप जी, तारीफ मैं भी कर रहा हूं, लेकिन ये समय नहीं था, ये समय नहीं था, ये समय कुछ और मांग रहा था। ये आप ही जाने, क्या आपने अच्छा, आप लोग बहुत सीनियर पत्रकार हैं, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था इस समय पर? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, शायद इस देश के 0.01% लोगों ने, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, शायद इस देश के 0.01% लोगों ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस मुद्दे को ये सबसे ज्यादा विरोध करते थे, जिस मुद्दे को लेकर के ये सबसे ज्यादा बैकफुट पर थे, आज उसी मुद्दे को लेकर के फ्रंट फुट पर खेलने का प्रयास करेंगे। ये लोग जब घिर जाते हैं तो अच्छा चलिए ठीक है, मैं एक दूसरा मुद्दा बता रहा हूं ना। अगर यही लोगों के इतने हितैषी लोग हैं, इतने ही भारतीय जनता पार्टी के लोग हितैषी है आम जनता के, आम लोगों के, तो इस देश का करोड़ों कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, कल 1 मई था, कल 1 मई में विजय बंधु, आदरणीय विजय बंधु जी, जो
अटेवा नाम से संगठन चलाते हैं, ओपीएस की मांग करते हैं, पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के, पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के कल हम लोग सभी लोगों ने कैंडल मार्च किया था पहलगाम की घटना को लेकर के, और पुरानी पेंशन की मांग पुरानी चली आ रही है। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, अगर वास्तव में ये सबका साथ और सबका विकास करते हैं और वास्तव में ये देशवाद राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, तो करोड़ों कर्मचारियों की ये पुरानी पेंशन की मांग को मान ले। लेकिन मैं आज आपके चैनल से फिर ये कहना चाहता हूं, भले ही मेरा बयान ये विवादित हो, जिस दिन ये फिर से पुलवामा पहलगाम जैसी घटनाओं पर फिर ये फंसते हुए नजर आएंगे, उसी दिन चोरी से चुपके से ये कह देंगे ठीक है आज अब ओपीएस मान ली जाती है। क्योंकि अभी थोड़ी दिन पहले इन्होंने सदन में खड़े होकर के 8वें वेतन आयोग को मना किया था, लेकिन बाद में देखा जब घिरते हुए नजर आए तो 8वां वेतन भी इन्होंने, वेतन आयोग भी बना। let me go across sir to जब फंसते हैं तभी कोई ऐसा निर्णय ले पाते, उससे पहले कोई अच्छा निर्णय नहीं ले पाते। राइट। सुरेश चंद्र राजन जी, आपको क्या लगता है कि अभी अनाउंसमेंट क्यों आई है ये कास्ट सेंसस की, जातीय जनगणना की जो अनाउंसमेंट आई है? आई वॉज ऑल्सो वेरी सरप्राइज्ड। पता नहीं, शायद आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन होगी, हो सकता है शैलेश पांडे जी को इनसाइड इंफॉर्मेशन हो, मुझे मालूम नहीं है। मेरे पास तो नहीं थी सर, और ना ही प्रदीप जी के पास थी, जहां तक मैं जानता हूं। तो अभी सब लोग जब अपेक्षा ये रख रहे थे कि पहलगाम के अटैक को लेकर के कोई बहुत बड़ी चीज होने वाली है, उसी वक्त ये जातीय जनगणना की जो अनाउंसमेंट हुई है, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि ये तो आपकी डिमांड थी ना राजन जी। राजीव जी गुड इवनिंग, प्रदीप जी गुड इवनिंग। नमस्कार। गुड इवनिंग। राजीव जी, सबसे पहले तो पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ है उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी कोई राजनीति नहीं करना चाहती है जी। आपने आज भी देखा होगा कि कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी की अर्जेंट मीटिंग हुई, उस मीटिंग में हम लोगों ने आज रेजोल्यूशन पास किए हैं। उसमें उस रेजोल्यूशन में ये है कि इस आतंकवादी हमले में जो पीड़ित लोग हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है या जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, उन पूरे परिवारों का पुनर्वसन करना चाहिए। उनको सभी तरह की मदद सरकार ने करनी चाहिए। उसके साथ साथ हम ये भी मानते हैं कि सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली इस जगह पे इस तरह का आतंकी हमला, ये सुरक्षा में हुई चूक है, इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। और उसके साथ साथ हम लोगों ने देश की जनता को शांति, एकता और संकल्प बनाए रखने का भी हमने अपील किया है। और रही बात जाति न्याय जनगणना की, जी, जाति न्याय जनगणना ये जो मुद्दा है, सबसे पहले हमारे नेता और लोकसभा के विपक्ष नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने उठाया था। और आपको मालूम होगा, पूरे देश जानता है, दुनिया जानती है, जब राहुल गांधी जी ने जाति न्याय जनगणना करने का मुद्दा उठाया था, उस वक्त मोदी सरकार ने, भाजपा और आरएसएस ने उनकी जम के आलोचना की थी। इस मांग को लेके उन्होंने कड़ा विरोध जताया था और बार बार राहुल गांधी को लेकर उन्होंने पर्सनल लेवल पे बहुत ही शर्मनाक स्टेटमेंट किए थे। यहाँ तक कि संसद भवन में उनके अनुराग ठाकुर ने ये कहा था कि जिनके जाति का पता नहीं है वो गणना करना चाहते हैं। तो ये उनकी सोच थी, लेकिन हमारा ऐसा मानना है सर, हम ये नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उस पहलगाम के आतंकी हमले से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह की ये घोषणा की गई है। लेकिन जाति न्याय जनगणना करने का मोदी सरकार की घोषणा का हमने स्वागत किया है और हम स्वागत करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम लोग, मोदी सरकार ने इससे पहले लोकसभा इलेक्शन के पहले महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात की थी। वो एक जुमला था, वो अभी तक उस आरक्षण को लागू नहीं कर पाए हैं या उस आरक्षण का बेनिफिट नहीं ले पाए हैं। उसी तरह से बिहार हो या पश्चिम बंगाल या आने वाले जो विधानसभा के इलेक्शन है, उससे पहले ये जुमला नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार को ये जो निर्णय लिया है उसको हम समर्थन करते हैं। और प्रदीप जी, हाँ। उनको तत्काल जाति न्याय जनगणना शुरू करनी चाहिए और उसकी एक निश्चित कालावधि डिसाइड करनी चाहिए, एक उसको टाइमलाइन फ्रेम करना चाहिए और उसके दौरान उन्होंने जल्द से जल्द जाति न्याय जनगणना करनी चाहिए। राजन जी, आज मोदी साहब केरल में थे, शशि थरूर मंच पे था, सीएम पिनराई विजयन मंच पर था। शशि थरूर को देखकर मोदी साहब ने कहा कि कांग्रेस का नींद हराम होने वाला है। शशि थरूर को मंच पर देखकर
और आगे जयराम रमेश ने उनके उत्तर में दिया कि हम आपके नींद को हराम करेंगे, हम हिसाब मांगेंगे आपसे कि पहलगांव टेरर अटैक के बाद उस चीज को छोड़कर आप अडानी के सेवा में लगे हो, बिकॉज वो पोर्ट अडानी का बना है। तो ये उत्तर क्या जरूरी था सुरेश चंद्र राजन जी, क्या उत्तर जरूरी था? ये नरेंद्र मोदी जी जिस तरह के स्टेटमेंट करते हैं, और आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी का इस तरह का स्टेटमेंट उस वक्त आता है जब नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार डरी हुई होती है। आपने देखा होगा, आपने एक समय जाति न्याय जनगणना के मुद्दे पर अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, इन्होंने कहा, इस जाति न्याय जनगणना की मांग करने वाले लोगों को अर्बन नक्सलाइट भी कहा था। तो आप मुझे, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के मेरे सहयोगी प्रवक्ता है या उनके नेताओं को पूछता हूं कि आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इसकी घोषणा की है, तो क्या आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ या केंद्र सरकार में जितने भी मंत्री हैं, ये सारे अर्बन नक्सलाइट हो गए क्या? इसका मुझे जवाब चाहिए। लेकिन सुरेश चंद्र राजन जी, इसके पहले कि मैं शैलेश पांडे जी के पास जाऊं, एक छोटा सवाल आपसे। अभी क्या है कि आपकी जो पार्टी है, मुंबई रीजनल कांग्रेस पार्टी जो है, एमआरसीसी जो है, वो एक बार फिर पुनर्जीवित हो गई है। उसमें बहुत एनर्जी दिख रही है, मुझे बहुत ऊर्जा दिख रही है। लेकिन अभी तक आपने ये जो अनाउंसमेंट आई है कास्ट सेंसस की, देखिए साहब, ऐसा है कि जहां तक टेररिज्म का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी की स्ट्रैटेजी ये है कि देश जैसे चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए। हम लोगों को, पाकिस्तान को ये नहीं दिखाना चाहिए कि देश जो है वो बिल्कुल रुक गया है पाकिस्तानियों की वजह से। वो मैसेज भेज रहे मोदी जी सबको कि भारत को रोकना टोकना असंभव है, जैसा भारत चल रहा था वैसे ही चलेगा। और हमारा जो हाथी है, जो चल रहा था, चलते चलते पाकिस्तान को कब कुचल दे पाकिस्तानियों को भी मालूम नहीं पड़ेगा। ये मेरा मानना है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जातीय जनगणना की जो अनाउंसमेंट हुई है, आप लोगों ने वेलकम किया है, लेकिन जो सेलिब्रेशन होनी चाहिए थी आप लोगों के हर एक के पार्टी हेडक्वार्टर्स में, आपकी पार्टी में, वो सब मुझे नहीं दिख रही है सर। वो कब होगा, वो तो बताइए। सर मैं आपको ये इससे आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आज देश पहलगांव का जो आतंकी हमला हुआ है उसके कारण बहुत दुखी है। और आपने केवल मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी की बात नहीं है, देश भर के किसी भी, पुणे का एक दो उदाहरण, महाराष्ट्र का और कुछ राज्यों का एक दो जगह का छोड़ के, देश में किसी भी कांग्रेस के हेडक्वार्टर में या रीजनल पार्टी कांग्रेस ऑफिस में कहीं इस तरह का सेलिब्रेशन नहीं किया है। ये हमारी भूमिका है, हम नहीं चाहते। हमने I wanted to know. All right, I want to know, which is very good. Congratulations to you. I thank you so much. That is really wonderful. जी। तो हम लोग चाहते हैं कि देश में अमन और चैन बना रहे जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। जल्द से जल्द जिस पाकिस्तान ने भारत की तरफ बुरी आंख उठाकर देखने की हिम्मत की है, भारत में इस तरह के हमले किए हैं, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। अगर आपको मालूम होगा कि आज का जो हमारा CWC का रेजोल्यूशन पास हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने जिस तरह के भारत में आतंकी हमले कर रहा है, तो उसका वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, जागतिक लेवल पे अलग अलग क्षेत्रों में उनकी बंदी करनी चाहिए और उनके ऊपर पाबंदी करनी चाहिए। वंडरफुल, बट दैट इज अ वेरी वेरी मैच्योर्ड वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, सो कांग्रेचुलेशंस टू यू। और राहुल गांधी जी की भी जो स्टेटमेंट आई थी अभी, सारे कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन सबको, सबके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए कि भाई आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे, जो मैंने कहा है और खड़गे जी ने कहा है वही कांग्रेस की नीति है, हम सरकार के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, सरकार जो भी एक्शन लेगी, वी आर विद द गवर्नमेंट, दैट्स इट। और पाकिस्तान के खिलाफ जल्द से जल्द दीजिए। शैलेश पांडे जी, अब आप बताएं सर। सारा हिंदुस्तान वेट कर रहा है, हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं सर। आज 2 मई हो गई सर, 2 मई हो गई, 10 दिन 11 दिन हो गए सर। कब हमारे जो 26 लोग मर गए हैं उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी, आप मुझे बताइए सर प्लीज। अब आप बताएं, अब आप बोलें सर। पांडे जी। राजीव जी, मैं यही कहूंगा कि राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात देकर राष्ट्र विजयी हो हमारा। ये पाकिस्तान परस्त इस्लामिक जिहादी आतंकवादी हमला जो हमारे देश पर हुआ, कश्मीर में हुआ, भारत के 28 नागरिक शहीद हुए, जिसमें 25 लोगों को इसलिए आतंकवादियों ने चुन चुन कर मारा क्योंकि वो हिंदू थे। उनकी पहचान मुझे नहीं पता थी, किसी को नहीं पता थी। कश्मीर के पहलगाम से, बैसारन वैली से
उन पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने उनकी पहचान पूरी दुनिया को बताई कि वो हिंदू थे, इसलिए उनको मारा गया, उनको कलमा पढ़ा कर देखा गया, उनके पैंट उतार कर देखे गए। और इसलिए ये कोई भूल ना करे, ये कोई सोचे भी नहीं कि पाकिस्तान और आतंकवादियों को सबक नहीं सिखाया जाएगा। इसके पहले जो सबक मोदी सरकार ने दिखाया है, सिखाया है, सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके, उससे भी खतरनाक और भयानक इंतकाम बदला लेगी मोदी सरकार और ये भारत की सेना और पूरा भारत। और कोई भी इसमें ये ना सोचे कि इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई है। देखिए, जैसे ये चीजें हुई, मोदी जी सऊदी अरब में थे, वहां से तुरंत वो आते हैं, अमित शाह तुरंत दिल्ली से कश्मीर में जाते हैं, जिस जगह पर यह हादसा होता है वो बैसरन वैली में जाते हैं, वहां पर हाई लेवल मीटिंग लेते हैं। मोदी जी तुरंत आकर हाई लेवल मीटिंग लेते हैं और तुरंत सिंधु जल समझौता को तोड़ते हैं। तुरंत पाकिस्तान उच्चायोग से पाकिस्तान के अधिकारियों को पाकिस्तान जाने का आदेश देते हैं। तुरंत देश में रहने वाले सभी पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश देते हैं। तुरंत वीजा के जो समझौते थे वो सारे समझौते रद्द किए जाते हैं। जिस किसी भी प्रकार के पाकिस्तान से कोई भी संबंध नहीं रखा जाएगा, सारे तोड़ दिए जाते हैं। और आप देख रहे हैं इस वक्त पीओके के बॉर्डर पर देश एक्शन कब होगा सर? भारतीय सेना अभ्यास कर रही है और भारतीय सेना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इन आतंकवादियों को और जो भी जिसकी जमीन इस्तेमाल हुई, जिसका दिमाग इस्तेमाल हुआ, जो भी लोग शामिल है, उनको जमीन में दुनिया पांडे जी के भी छोर पर जाकर उनको एक्शन कब होगा सर? पांडे जी कश्मीर आगे हमको दिखता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 1000 मदरसे बंद कर दिए, स्कूल्स बंद कर दिए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 2 महीने का सामान, राशन पानी और दवाई आप तैयार करके रखो, हर वहां के रहने वालों को कहा। पर जयराम रमेश ने पूछा आपको हिसाब देना पड़ेगा, आपको हिसाब देना पड़ेगा। पहलगांव टेरर अटैक हो गया, मोदी जी अटैक करने के बजाय अडानी को प्रशंसा, अडानी के काम करने में लगे हुए, यानी पोर्ट जो अडानी बनाए थे केरल में। तो हिसाब आपसे मांग रहा है जयराम रमेश और कांग्रेस। पांडे जी देखिए, ये मोदी सरकार ने कश्मीर के अंदर आतंकवादियों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया है। वहां पर जो भी आतंकवादी इसमें शामिल थे, जिनकी शिनाख्त हुई, उनके घर को बम से उड़ाया गया और बुलडोज किया गया। सैकड़ों लोग गिरफ्त में हैं, पूरी जानकारियां ली जा रही हैं, पूरा खाका तैयार किया गया है। और ये एक देश दूसरे देश और आतंकवादी का विषय है। इसमें भले थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन जो भी काम किया जाएगा वो साउंड प्रूफ काम किया जाएगा। और ये इस पाकिस्तान और आतंकवादी कल्पना भी नहीं किए होंगे, सोचेंगे भी नहीं, उससे बड़ी कार्रवाई मोदी सरकार, भारत की सेना आतंकवाद की कमर तोड़ेगी, पाकिस्तान की कमर तोड़ेगी और हमारे 28 भारतीयों के मौत का बदला जरूर लेगी और जरूर लेना शुरू कर दिया है। आज देखिए, जिस तरह से सिंधु जल समझौता तोड़ा, बिलावल भुट्टो वहां से चिल्लाने लगे कि अगर हमारा पानी रोका तो हम हिंदुस्तान का खून बहा देंगे। अरे औकात नहीं है बिलावल भुट्टो की, उनके माँ की औकात नहीं थी, उनके बाप की औकात नहीं थी और पाकिस्तान की भी कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर घुसकर हिंदुस्तानी सेना और मोदी सरकार, सर एक छोटी सी चीज आपको बता दूं, जो भी लोग जवाबदार है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन इस वक्त विरोधी पार्टियों द्वारा सवाल खड़ा किए जाना, मैं इसे राजनीति कहता हूं। ये समय सवाल खड़ा, सर आपके साथ खड़े हैं सब लोग सर? नहीं है, नहीं सर आपके साथ खड़े। देखिए राजीव जी, आपके साथ ये सुनिए ना, मैं बोलता हूं, ये राहुल गांधी के और कांग्रेस पार्टी के दिखाने के दांत अलग है, खाने के दांत अलग है। ये वही आपके बारे में भी कहते हैं। नहीं सुनिए, बोलिए। ये खुद तो आके कहते हैं कि नहीं हम साथ में हैं। फिर इनके जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, वो कहते हैं नहीं पाकिस्तान से लड़ाई, लेकिन वो उसके बाद स्टेटमेंट आ चुकी है राहुल गांधी की सर, और उसके बाद स्टेटमेंट आ चुकी। महाराष्ट्र के इनके विरोधी पक्ष नेता है वडेट्टीवार, वो तो अलग ही कुछ अपनी उसके करने लगते उसके बाद आई जाते हैं।
सर वो आप वही स्टेटमेंट को क्यों दोहरा रहे हैं सर? उसके बाद बोला है राहुल गांधी जी ने। अरे नहीं। सर उसके बाद मैं ये कहता हूं, नदी में से बहुत कांग्रेस पानी बह पार्टी चुका है। इस देश के सामने एक्सपोज हो चुकी है। देश की जनता कांग्रेस की इन तो सर आप ये बता दें, राजू जी, मुझे बात करनी है। मैं आता हूं आपके पास, आ रहा हूं सर, एक मिनट। शैलेश पांडे जी ये तो बता दीजिए सर, आप बोलिए, आपकी टर्न है सर, आप बोलिए। लेकिन उसके बीच में एक छोटी सी बात जानकारी मैं आपको दे दूं, सलाल डैम हम लोगों ने बंद कर दिया था। जो चनाब का जो पानी है जो पाकिस्तान में जाता है वो हमने बंद कर दिया था। आज इतनी जोर से बारिश हुई है वहां पे, इतनी जोर से बारिश हुई है कि बांध टूटने वाला था, इसलिए दोबारा उसको खोलना पड़ा। तो चनाब जो बिल्कुल सूख गया था, एक बार फिर पानी वापस पाकिस्तान में छोड़ना पड़ा है। तो मेरा ये कहना है कि इंडस रिवर वाटर ट्रीटी को हमने सस्पेंड कर दिया है, लेकिन इंडस का पानी हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे? उसमें तो सर डैम्स बनाने में, चेक डैम्स बनाने में, रिजर्वॉयर्स बनाने में, आर्टिफिशियल लेक्स बनाने में, अलग से कैनाल्स बनाने में देश के लिए बहुत अच्छा होगा, मैं मानता हूं, जबरदस्त होगा, कोई टेंशन नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर के लोग तो सर बहुत उसको वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग, राजस्थान के लोग, यार अब पानी की किल्लत कोई नहीं होगी हिंदुस्तान में। लेकिन वो अभी तो आपको डैम से पानी छोड़ना पड़ गया ना सर, अब आप बोले। लेकिन उनमें 4-5 साल लगेंगे सर बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर। शैलेश पांडे जी बोलिए प्लीज। देखिए, आज पूरी दुनिया जानती है कि भारत और भारत सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कितनी तेजी से आगे है और दुरुस्त बात है, कितना फास्ट काम कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी समय लगता है हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मुद्दे पे बात करने के लिए बोलिए सर, नहीं तो जनरल बात करना है तो फिर मजा सर नहीं मैं है। बोल रहा हूं सर आपको, एक मिनट, सुरेश चंद्र राजन जी उनको बोलने दीजिए ना सर। और आपके पहले प्रजापति जी ने अपनी उंगली उठाई थी, मैं प्रजापति साहब के पास जाने के बाद सुरेश चंद्र राजन जी आपको पूरा वक्त दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, उनको बोलने तो दीजिए ना। शैलेश पांडे जी ने आपको रोका नहीं कभी भी, आप जब बोल रहे थे। आप बोलिए सर, प्लीज प्लीज प्लीज। राजीव जी, कांग्रेस बोलिए सर, बोलिए। कांग्रेसियों की यही तकलीफ होती है कि इनको सच्चाई बोलो तो मिर्ची लगती है। आप क्या सुनना चाहते हैं मेरे मुंह से? आप बार बार जो बोल रहे हैं कि आप देखो जाति जनगणना बीच में ला दिए पुलवामा पहलगाम को भुलाने के लिए, आप ये विषय मेरे से सुनना चाहते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए विरोधी पार्टियों को, कांग्रेस को। इस वक्त देश के लिए प्रथम मुद्दा देश की रक्षा है, सुरक्षा है, आतंकवाद से लड़ाई है, पाकिस्तान का खात्मा है, पीओके को लेना है और आतंकवादियों का कमर तोड़ना है। ये मैं दावे से कहता हूं, छाती ठोक के कहता हूं। लेकिन उसी के साथ हमारा देश चलता रहे, देश मजबूत रहे, ये भी दुनिया को दिखना चाहिए। देश का जो विकास की दर है, विकसित राष्ट्र की ओर हम भारत को बढ़ा रहे, उसमें भी हम एक पल में भी विश्राम नहीं लेंगे। हमारे जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, हमारे जो समाज को आगे बढ़ाने का काम है, वो उसी तीव्र गति से चलता रहेगा। हम तीव्र गति से काम करते हुए आतंकवाद का खात्मा भी करेंगे, पाकिस्तान का खात्मा भी करेंगे और जाति जनगणना करके जो पिछड़े हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनके उत्थान करने के लिए, सामाजिक न्याय करने का ये काम जो भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, आज पूरे देश की 140 करोड़ जनता उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। आज 1931 के बाद यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने लिया, मोदी सरकार ने लिया। तब कहां थी कांग्रेस, तब कहां थी समाजवादी पार्टी, तब कहां थी विरोधी पार्टियां? आपने 1931 से लेकर आज तक 50-60 साल तक राज किया, लेकिन आप जाति जनगणना नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? सिर्फ आप लोगों की भावनाओं से खेलने का काम किया। पिछड़े, दबे, कुचले, शोषित, पीड़ित दलितों के साथ, ओबीसी, एसटी, एससी के साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार इस देश के पिछड़े, दलित, शोषित, पीड़ित, ओबीसी, एसटी और एससी समाज के साथ खड़े हैं और इसीलिए आज ये सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना की जा रही है और जो भी दबे, कुचले, पीड़ित, शोषित है, सभी को न्याय दिया जाएगा, सभी के लिए नीतियां निर्धारण की जाएंगी और सभी का उत्थान होगा। और हमारा जो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका आधार पर हम देश का संपूर्ण विकास करेंगे, क्योंकि 1947 तक हमें भारत माता को विश्व गुरु बनाना है और विकसित राष्ट्र हमें बनाना है इस देश को। जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। प्रजापति जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपने बीच में अपनी उंगली खड़ी करी थी, आपने कहा था कि कुछ बोलना चाह रहे थे सर, आप बोलिए सर। नहीं, शैलेश पांडे जी लगातार बात अपनी रख रहे थे। जातीय जनगणना का हमने भी स्वागत किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी स्वागत किया है, विपक्षी पार्टियों ने भी स्वागत किया है।
लेकिन लेकिन आप लोगों का जो स्वागत है पाकिस्तान की- वो किंतु परंतु के पाकिस्तान साथ पर- है, प्रश्न चिन्ह के साथ है। आप सर, भी बोलने सरकारें दीजिए ना थी। सर उनको। समाजवादी नहीं, समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के साथ अलायंस करके सरकार बनाई थी, तभी क्यों नहीं आपने जाति जनगणना कर ली? दुरुस्त बात। आज बड़ी बड़ी बिल्कुल, बात बिल्कुल। सो करते लेट हैं। हिम आंसर। बिल्कुल, सो उनको जवाब देने दीजिए दे ना रहा हूं, सर। जवाब सुन लीजिए सर। जी बोलिए ना सर, जवाब सुन प्लीज लीजिए। प्लीज बोलिए। आप तो जो समाज लगातार- आपको वोट करता है, जिस समाज की लगातार- लड़ाई आप लड़ते हो, उस समाज के साथ ही धोखा करने का काम एनडीए अलायंस इस वक्त कर रही है। सर बोलिए सर प्लीज। जी शैलेश पांडे जी, लगातार आप बोल रहे थे, आपने एक बार भी ये नहीं बताया कि किस तारीख को हमला होगा, किस तारीख को पाकिस्तान खत्म होगा। मैं कुछ मीडिया चैनल के जो थंबनेल है ना, मेरा बड़ा दुख होता है राजीव जी। जी अरे पांडे जी उनको बोलने तो दीजिए ना सर। शानदार पांडे जी सुन लीजिए, प्लीज, शैलेश जी प्लीज। पांडे जी सुन लीजिए, वो क्या पांडे जी तारीख बता के पांडे बता जी। कि हम आपको अरे- तारीख बता दे, हम तारीख आपको बता के सारी बात सर आपको खुद को मालूम नहीं होगी, पहुंचाएंगे। सर आपको खुद को मालूम नहीं होगी, प्रधानमंत्री को भी मालूम नहीं है। ये मैं आपको लिख के दे देता हूं अभी सर, मैं आपको लिख के दे देता हूं अभी। इवन द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट नो। सुन लीजिए बीपी बढ़ जाएगा, वरना सुन लीजिए। देश के अरे सुन लीजिए पांडे जी, सुन लीजिए, वरना जवाब नहीं होगा। आपके पीछे भी मैं बैठ रहा हूँ, जवाब नहीं होगा ये। सर शैलेश पांडे जी, आप ऐसे समय पर लेकर रखे आए हैं, इसे छूट करके शैलेश पांडे जी। पाकिस्तान से लड़ाई करके लड़ेगी, काटना कहते हैं, उसके लिए इसलिए सुन लीजिए। आपको तारीख बताने की जरूरत नहीं है। शैलेश आप पांडे हमेशा जी, तारीख पूछते हो, शैलेश तुम पांडे पूछते जी, हो। मैं आपका जवाब दे दूं। शैलेश पांडे जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जानकारी दे दूं सर। सीसीएस ने क्लियर कट, प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला, आप तीनों लोगों को, तीनों चीफ्स को पूरी आजादी है, आपको ऑपरेशनली कब क्या करना है, आपको किसी और को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। यू विल रिपोर्ट डायरेक्टली टू मी, दैट्स इट। Yes. तो कहने का मतलब यह हुआ, अभी तक राकेश प्रजापति जी, आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि तो प्राइम राजीव मिनिस्टर जी, हिमसेल्फ, प्रजापति- सर प्लीज, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ डज नॉट नो, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज नॉट बीन टोल्ड सो फार कि कौन सी डेट होगी, एंड दैट इज फॉर सिक्योरिटी रीजन, विच इज अ वेरी गुड थिंग। प्रजापति जी आप बोलें सर, प्लीज प्लीज। पांडे जी प्लीज। राजीव जी, सर, please. प्रजापति जी से कहिए कि भारतीय सेना से जाके पूछ ले। सर, या तो भारतीय सेना को सर आप कहिए, प्रजापति जी आपको 10 बार कोट कर चुके हैं। आपकी एब्सेंस में प्रजापति जी 3 बार आए शो में, और तीनों बार उन्होंने कहा कि शैलेश पांडे जी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि प्रजापति और कुमार समाज की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के वो अपने नेतृत्व को बताएंगे, ऐसा उन्होंने आपको कोट किया है। अब उनको बोलने देंगे सर उनको राजीव जी, मैंने उनसे पत्र मांगा था, वो दे देंगे सर, अभी देने वाले पत्र दिया ही नहीं। क्या अभी नेक्स्ट वीक सर, नेक्स्ट वीक आ जाएगा जानकारी सर, अगले हफ्ते आ जाएगा सर, अगले हफ्ते आ जाएगा, अगले हफ्ते आ जाएगा। मुझे पत्र दीजिए, मैं जरूर फॉलो अप करूंगा। अब मैं बोल लूं शैलेश पांडे जी, मैं हाँ बोलिए प्रजापति जी, अब आप बोलिए प्लीज, बोलिए। उसके बाद राजन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी प्रजापति जी बोलिए। शुक्रिया पांडे जी बोलने के लिए, क्योंकि मैं बीच में कोई इंटरप्ट करता नहीं है राजीव जी के यहाँ पर बैठ करके, इसलिए अच्छा भी नहीं लग रहा है। जी बोलिए सर, प्लीज गो अहेड। 1 घंटे का शो होता है, पर्याप्त समय मिलता है। सर आप 1.5 घंटा बोलिए, सर आप 1.5 घंटे तक बोलिए, सर आप 1.5 घंटा बोलिए, नो प्रॉब्लम, बोलिए। सीधा मैं ये कह रहा हूं कि आप चलिए डेट नहीं बताएंगे, मैं फिर ये मीडिया वालों को कैसे पता चल रहा है, मुझे ये अचंभा आ रहा है। क्योंकि मीडिया वाले क्या लिख रहे हैं, थंबनेल देख करके बड़ा आश्चर्य होता है, एग्रेशन भी आता है, और कभी कभार ये भी लगता है कि सर को जो है दीवार में मारा जाए बैठ करके। क्या लिख रहे हैं कि आज रात पाकिस्तान की आखिरी रात होगी, कल पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाएगा। ये थंबनेल दिखा रहा हूं मैं, किसी चैनल का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मीडिया पर सर मालूम है किसका नाम ले रहे हैं आप, सर सबको मालूम है। लीजिएगा, 5 घंटे में पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। अब पाकिस्तान नहीं बचेगा। थल जल थल नभ हर तरफ से पाकिस्तान पर टूट पड़ी है फोर्स, भीषण युद्ध शुरू हो गया है। पाकिस्तान भारत के युद्ध में फ्रांस भी टूट पड़ा है, फ्रांस भी गोलाबारी करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। गायब हो गए शहबाज शरीफ, ना जाने भारत की, जिसे मैं तो कह रहा हूं बिकाऊ मीडिया है, वो किस तरीके से इस तरीके के
थंबनेल बना बना करके दिखा रही है। क्या ऐसी मीडिया पर आप लोग रोक नहीं लगाएंगे? जब आपकी तरफ से डेट डिसाइड नहीं है तो वो लोग कैसे दिखा रहे हैं कि आज रात आक्रमण होगा? तब वो लोग ऐसा क्यों दिखा रहे हैं कि कल को पाकिस्तान गायब हो जाएगा नक्शे से? तब वो ये क्यों कह रहे हैं कि फ्रांस भी कूद चुका है, फ्रांस भी जो है अपना गोला बारूद तैयार कर चुका है? तब वो ये क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका भी साथ देगा? तब वो ये क्यों कह रहे हैं कि चीन भी साथ देगा? मैं जब डेट आपको ही नहीं पता है तो उन्हें डेट कहां पता होगी? दूसरी बात शैलेश जी, मैंने आपका व्यक्तिगत नंबर पर मैसेज किया था आपको, आपका मोबाइल नंबर लेकर के आपको मैसेज किया है मैंने, आप देखिएगा। आपको 10 दिन में फुर्सत ही नहीं मिली कॉल, मतलब एक रिप्लाई करने की। आप कहाँ सेंसिटिव लगते हैं देश के बड़े मुद्दे को लेकर के? कहीं सेंसिटिव नहीं लगते। चलिए सर, आप जवाब देंगे। प्रजापति समाज के इस मुद्दे को आपने ऑन डिबेट कहा था, कि मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करूंगा और शीर्ष नेतृत्व से बात करके आपकी समस्या का सॉल्यूशन करूंगा। मैंने नंबर लेकर के आपको मैसेज किया है, आप देख लीजिएगा, मैंने व्हाट्सएप आपको किया हुआ है, लेकिन आपको 8 से 10 दिन हो गए, 8 दिन में आपको रिप्लाई करने का समय नहीं मिला। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि अभी आप बड़ी लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, सबका साथ सबका विकास, शोषित पीड़ित वंचितों की बात करेंगे तो शैलेश पांडे जी आपको जवाब नहीं होगा एनएफएस का, जवाब नहीं होगा कॉलेजियम सिस्टम का, जवाब नहीं होगा लेटरल एंट्री का, जवाब नहीं होगा ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि मैं तो इन पर स्टडी कर रहा हूं, मैं तो लगातार इनको वॉच कर रहा हूं, मैं लगातार इन पर बोल रहा हूं। ईडब्ल्यूएस, एनएफएस, कॉलेजियम सिस्टम, लेटरल एंट्री, इन पर आपका जवाब नहीं होगा। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर प्रजापति समाज को आप न्याय कब दिलाएंगे? बताइए। मैं कागज भेजने की बात है, अभी आपको 10 मिनट के अंदर, जैसे ही डिबेट खत्म होगी, आपका नंबर मेरे पास है, 10 मिनट के अंदर आपको मैं जो है कागज आपके पास भेज दूंगा। हाँ, कागज आपको भेज दूंगा और भेज करके आप उनको कागज को लीजिएगा, ठीक है ना, और रखिएगा। हम तो चाहते हैं, लेकिन प्रजापति जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। चाहते हैं इस देश के सर प्रजापति जी, शोषित पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए सर। एक चीज मुझे मालूम है सर, आप क्या दिखा रहे हैं? मोबाइल है पांडे जी, आपको दिखा रहा हूं, आप मुझे मालूम है आप क्या दिखा रहे हैं। राजू जी, इन्होंने कोई मैसेज मुझे एक सेकंड सर, कोई बात, ये देखिए सर, कोई बात नहीं सर, कोई बात पत्र भेजिए सर, मैं कुछ सर, आपकी इजाजत हो पांडे जी। अरे जब आपकी बात मैं करने, शैलेश पांडे जी, जब मैं आपकी बात करने जा रहा हूं तब तो सुन लो सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दोनों प्रजापति जी और सुरेश चंद्र राजन जी इसका जवाब दें। प्रजापति जी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक सवाल हमारे शैलेश पांडे जी ने पूछा था, लेकिन क्योंकि वैसे ही पूछा तो इसलिए वो रह गया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। यू रिमेंबर द काका कालेकर रिपोर्ट? प्रजापति साहब, काका कालेकर रिपोर्ट जो थी, काका कालेकर रिपोर्ट, Kaka Kalelkar report, it was established in January 1953 and they registered about, I think, 2,399 OBCs, अलग अलग जातियां, प्रजातियां वगैरह वगैरह वगैरह, अलग अलग शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट में कितने लोगों को होना चाहिए। 1955 में, मार्च 1955 में 2,399 backward castes or communities were identified, of which 837 had been classified as the most backward. और उस कालेलकर रिपोर्ट में सर प्रजापति समाज भी था। राकेश प्रजापति जी, 1955 से लेकर के आज तक कुछ नहीं हुआ उसके बारे में सर। 1955 में इनफैक्ट पंडित जी जस्ट डिसाइडेड टू कीप द रिपोर्ट असाइड। अब आप मुझे बताएं सर, 1955 की रिपोर्ट सर, कुछ तो एक्शन होना चाहिए था। अब आप बोलें सर। प्रजापति जी, प्लीज, आई वुड लाइक टू हियर यू, प्लीज गो अहेड। जी राजीव जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आज आपने किया है, बहुत अच्छा शानदार प्रश्न किया है। मैं थोड़ा इससे बैक में जाना चाहता हूँ, 1931 में जाना चाहता हूँ। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, 1931 में जब कास्ट सेंसस हुआ था, लास्ट कास्ट सेंसस, आखिरी कास्ट सेंसस बनाई थी, आखिरी कास्ट एसटी की गोलमेज सम्मेलन हुआ था जी, करेक्ट, बोलिए बोलिए। उस समय जो है ओबीसी कुम्हार जो है शिल्पकार के रूप में था।
जी। ना कि ओबीसी के रूप में था। Correct। ओबीसी के रूप में नहीं था, कुम्हार शिल्पकार के रूप में था। शिल्पकार 26 जातियों का एक समूह था। उस 26 जातियों में शिल्पकार के रूप में कुम्हार 6ठे नंबर पर था। और 1950 से लेकर के 1957 तक, इसीलिए मैंने पहले भी आपकी डिबेट में ये कहा था, जी, बिल्कुल। 1950 से लेकर के 1957 तक शिल्पकार के रूप में ही कुम्हार के सर्टिफिकेट जारी होते रहे थे, होते आए थे। लेकिन जब 1953 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक कमीशन बनाया जिसको काका कालेलकर कमीशन कहते हैं। 1953 में जब काका कालेलकर कमीशन हुआ बना, तो काका कालेलकर कमीशन के पास तो हमारे ही समाज के कुछ लोग, क्योंकि अब उसमें ये कहिए चाहे उनकी गलती कहिए चाहे कुछ ही कहिए, कि कुछ लोगों ने कहा, क्योंकि वो दलित शब्द एक गलत था ना, उस दलित की वजह से कुछ लोगों ने शायद ये जाके कहा नहीं साहब हमें पिछड़ी वर्ग में रख दीजिए। तो उस समय पर कुम्हार के रूप में 1955 में हुआ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट लागू ही कहाँ हुई? कहां से कोई हुआ ही नहीं। बस केवल उन्होंने तो केवल ये कह दिया था ये पिछड़ा वर्ग है। उस समय तक पिछड़ा वर्ग को ना तो कोई शैक्षिक आरक्षण मिलता था, ना कोई राजनीतिक आरक्षण मिलता था, ना ही कोई सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिल रहा था। वो तो मोरारजी देसाई आए 1977 में, और मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन बनाया, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में लागू होनी थी, लेकिन तब तक मोरारजी देसाई का प्रधानमंत्री चला गया। लेकिन 1990 में जब आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, और विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बनने के बाद 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने का काम किया गया, और 92-93 तक पहली रिपोर्ट लागू हुई विश्वनाथ प्रताप सिंह के रूप में। जो पहली, अभी तक मंडल कमीशन की केवल 2 रिपोर्टें लागू हुई है। मैं शैलेश पांडे जी से आज और कहना चाहता हूं, अगर आप इतने ही पिछड़े के हितैषी हो, अगर आप इतने ही अगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को पिछड़ा मानते हैं, तेली समाज से मानते हैं, तो वो मंडल आयोग की सारी रिपोर्टें लागू कर दे। केवल मंडल आयोग की 2 रिपोर्टें लागू हुई हैं। हमारी अगर ये पिछड़ों के वास्तव में कैसी है, तो सारी रिपोर्टें जो मंडल आयोग की वो लागू करने का काम करें। दूसरी रिपोर्ट, अर्जुन सिंह जब मानव संसाधन मंत्री हुआ करते थे और माननीय नेताजी रक्षा मंत्री हुआ करते थे, तब शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण लागू करने का काम किया पहला विश्वनाथ प्रताप सिंह। लेकिन ये आप ही लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, आपने विश्वनाथ प्रताप सिंह से जो है अपना समर्थन वापस लेकर के विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिराने का काम किया था। और माननीय लाल कृष्ण आडवाणी उस समय पर मंडल कमीशन के विरोध में कमंडल यात्रा लेकर के पूरे देश के अंदर निकले थे। ये बात पिछड़ों को भूलनी नहीं चाहिए। लेकिन इस समय आपके बहकावे में आ गया पिछड़ा, हिंदुत्व के बहकावे में आ गया। लेकिन 2024 के चुनाव में पीडीए के नारे पर आकर के पीडीए के साथ चलते हुए उसी पिछड़े ने आपको उत्तर प्रदेश से भगाने का काम किया, और 2027 में फिर से पीडीए पर पिछड़ा फिर से सारी आपके बहकावे को समझ चुकी है, आपकी बात को समझ चुकी है, और आपको उत्तर प्रदेश से निकालने का काम करेंगे। सुरेश चंद्र राजन जी, जो बीजेपी का आरोप है आप पर कि आप कास्ट को सिर्फ वोट के हिसाब से आपने तोला है, कभी कास्ट बेस को आपने जस्टिस देने का काम नहीं किया, ये अभी मोदी जी किया है। सुरेश चंद्र जी, आपने सिर्फ वोट के हिसाब से कास्ट को मैनिपुलेट किया है। सुरेश चंद्र राजन जी। प्रदीप जी, आपके सवाल का जवाब देता हूं मैं। हाँ। उससे पहले ये भाजपा के जो प्रवक्ता है शैलेंद्र पांडे जी, उनके सवाल का जवाब शैलेश पांडे जी, शैलेश पांडे जी, एक शैलेंद्र जी बहुत बड़े हुआ करते थे सर, वो कांग्रेस के प्रवक्ता हुआ करते थे, बहुत बड़ा नेशनल स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे सर 1983-84 में। आप उनकी याद दिलवा रहे हैं। और एक शैलेंद्र जो थे, उन जैसा तो कोई लिरिसिस्ट और पोइट नहीं हुआ। तो आप शैलेश पांडे जी, क्या तारीफ हो रही है आपकी। जी बोलिए बोलिए। बहुत धन्यवाद। पहलगांव हमले को सर 10 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है जी। उस हमले में जो पीड़ित है उनके परिवार न्याय की आस लगाकर बैठे हुए हैं, और पूरा देश चाहता है, इंक्लूडिंग अपोजिशन, कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। दुरुस्त बात, आई एग्री। लेकिन देश के प्रधानमंत्री या सरकार के कुछ निकम्मे लोग कांग्रेस के ऊपर, विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते हैं, उसकी आलोचना करती है, और उनको उसमें बहुत धन्यता मिलती है।
और अभी आपने देखा होगा कि ये जो उनके प्रवक्ता है ये बोलते हैं कि कांग्रेस के खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बेशर्मी की भी कोई हद होती है। एक ऐसे न्यूज चैनल के ऊपर आकर इस तरह के बेजवाबदार स्टेटमेंट करना निंदनीय है। तो सर ये। आपके मुख्यमंत्री ने कहा ना, आपके मुख्यमंत्री का मुंह बंद कराना चाहिए था ना उस वक्त। पांडे जी बोलने दो उनको। मुझे पांडे जी मुझे बात करने दीजिए। हाँ, नहीं तो आप पांडे ऐसा जी झूठा आरोप मत पांडे जी लगाइए। पांडे जी आप पांडे जी आप जब बोला कि अरे पाकिस्तान इनका से लड़ाई लड़नी पांडे है, जी, राजू जी का माइक म्यूट कर दीजिए। पांडे जी आप जब बोल रहे थे उनको मना कर दिया था, अब उनको बोलने दो। पांडे जी बोलने दो, उसके बाद आप ही के पास आते हैं। बात सुनिए आपकी। आप बोलिए मुझे सुरेश एक बात चंद्र राजन जी बताइए, बोलिए। आप राजन हमारे जी बोलिए प्लीज। आप हमारे इधर- मुख्यमंत्री इधर- की बात इधर करते बोलिए। हो। जी। जब जाति न्याय जनगणना का मुद्दा आया तो संसद भवन में अनुराग ठाकुर जैसे एक जवाबदार मंत्री ने कहा कि जिनके जाति का ठिकाना नहीं वो गन्ना की बात करते हैं। ये क्या है? और उसके बाद आप मुझे बताओ, आज मोदी सरकार ने जाति न्याय जनगणना की घोषणा की, क्या नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के जाति का पता नहीं है? नितिन गडकरी जाति न्याय जनगणना के मुद्दे पे अलग अलग स्टेटमेंट करते थे, आज उनको आप अर्बन नक्सलाइट बोलोगे? और ये दूसरी बात राजू जी, बोलिए। विजय वडेट्टीवार हो या कोई हमारा नेता, कोई छोटा मोटा नेता बात करता है तो आपको मालूम होगा हमारी जो सेंट्रल पॉलिसी है, हमारी केंद्र सेंट्रल लीडरशिप ने जो निर्णय लिया है कि ये छोटे मोटे नेता होते तो उनको हम लोगों ने तो उनके ऊपर कार्रवाई करने के आदेश भी दिया है। उनके ऊपर अगर फ्यूचर में इस तरह के स्टेटमेंट करता है तो कांग्रेस पार्टी उसको दंडित करेगी, ये हमारा रेजुलेशन है। और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि सीडब्ल्यूसी में आतंकी हमले के बाद जो निर्णय लिया था वही कांग्रेस की अधिकृत भूमिका है सर। फिर भी ये लोग, और मुझे एक बात बताइए, विजय वडेट्टीवार हो या कोई एक सीएम के स्टेटमेंट के वजह से आप पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का बंद करोगे क्योंकि हमारे नेताओं ने इस तरह के बयानबाजी किया है? अरे भाई साहब, जब आप अकार्यक्षम हो, आप में कुछ करने की क्षमता नहीं है, उस वक्त आपके कमियों के ऊपर कोई सवाल पूछता है तो आपको मिर्ची लगती है और आप बोलते हैं कि कांग्रेस को मिर्ची लगती है। जब नरेंद्र मोदी को या उनके सरकार को कोई सवाल पूछता है तो सबसे ज्यादा मिर्ची तो आप लोग को लगती है। अभी रही बात जाति न्याय जनगणना की, मुझे ऐसे लगता है कि सर कांग्रेस ने हमेशा से सारे जो वंचित समाज है, उपेक्षित समाज है, आज तक देश में जितनी भी कल्याणकारी योजना की है ये सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? जब उनकी सरकार आई, सरकार आने के बाद कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जो योजनाएं थी उसके नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वही योजना को आगे लेके गए। और ये बात करते हैं कि कांग्रेस ने दलितों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया। आज अगर दलित समाज, वंचित समाज या जितने भी बैकवर्ड क्लास है, ओबीसी है, एसटी है, माइनॉरिटी है, अगर सीना ठोक के खड़े हैं तो वो केवल कांग्रेस और कांग्रेस के समविचारधारी पार्टियों के वजह से है। इनके लोग तो मस्जिद में घुसने की बात करते हैं, ये बोलते हैं मस्जिद में घुसपे मारेंगे। दलित अगर कोई मंदिर में जाता है तो उसको मारा जाता है, गांव से भगाया जाता है। महाराष्ट्र में ऐसे कई घटनाएं हैं सर, मंदिर में कोई दलित जाता है तो उसको मारा जाता है। नागपुर की घटना लीजिए, मंदिर में गया तो वहां पे उस युवाओं को जान से मार दिया गया। नांदेड़ की घटना लीजिए, उसने जय भीम का नारा लगाया तो उसको जान से मार दिया गया। और ये सरकार इनकी है। जब से महाराष्ट्र में और देश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा की सरकार आई है, उस दिन से लेकर आपने दलित अत्याचार की घटना अगर देखोगे, माइनॉरिटी के ऊपर की घटनाएं देखेंगे तो उसका परसेंटेज काफी बड़ा हुआ है। लेकिन सुरेश चंद्र राजन जी, और सर एक बात मुझे पूरा करने दीजिए। बोलिए। और ये सारा समाज जो है ना, ये अलग अलग छोटे छोटे समूह है जो आज देश को अपना देश मानते हैं, देश के ऊपर प्रेम करते हैं। ये सारे लोग आज असुरक्षित रह रहे हैं सर। तो सुरेश चंद्र खुला जाति धर्म के नाम पर उनको धमकाया जा रहा है। ये बहुत ही चिंताजनक है और हमारे देश ने ऐसा कभी देखा नहीं है सर। तो सुरेश चंद्र राजन जी, छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। ये कोई नई बात तो है नहीं। जब आपकी भी सरकार थी, आर पाटिल साहब होम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो खैरलाल जी का कांड हुआ, इससे ज्यादा बड़ा खौफनाक कांड आज तक कभी महाराष्ट्र में नहीं हुआ। उसके लिए लोगों को कितना अनशन करना पड़ा, कितना आंदोलन करना पड़ा कि मौत मांगे परिवार को कुछ ना कुछ। मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आपको उंगली उठाने की जरूरत नहीं, मैं आप ही के पास आ रहा हूं सर, कि मौत मांगे परिवार को किस प्रकार मौत मांगे परिवार को इंसाफ मिले। और तो और छोड़िए सर, हमारा जो चैनल था वह सहारा में था उस वक्त। आई वाज रनिंग 2 चैनल्स ऑफ सहारा, प्रदीप जी और मैं। सहारा समय मुंबई और सहारा समय एनसीआर। आपकी सरकार ने हमारे चैनल को बैन कर दिया था सर, क्योंकि खैरलाल जी में, मैं तो आप ही की सरकार कहूंगा, भले आर पाटिल साहब ने किया हो, आर पाटिल आपकी पार्टी से नहीं थे।
क्योंकि हम लोग सारी एजिटेशन दिखा रहे थे, एक एक चीज दिखा रहे थे कि यहां पे इस तरीके से दलितों के खिलाफ इस सरकार के, यानी 1999 में आई ना सरकार आपकी, सबसे पहले 1999 में, 95 to 99 शिवसेना बीजेपी की सरकार थी, 99 से लेकर के 2014 तक आपकी सरकार थी। तो हम लोग एक एक चीज दिखा रहे थे। तो दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, सर ये तो बहुत पुराना ट्रेडिशन है। वो जो गांव का कुआं होता है उसमें क्या करते हैं, घोड़ी पे कोई चढ़ के जा रहा होता है बेचारा अपनी शादी के लिए, उसको उसके साथ क्या किया जाता है। तो ये कोई नई बात है क्या? अब आप बोले, सुरेश चंद्र राजन जी बोलिए, प्लीज प्लीज बोलिए। प्रदीप जी, मैं मानता हूं कि भारत, अरे मैं राजीव हूं यार, बोलिए, प्रदीप बोलिए। जी, हाँ, मैं हाँ, सवाल मैंने राजीव पूछा जी, आपसे, हाँ, बोलिए। मैं मानता हूं कि इस देश में दलितों के ऊपर या जो भी बैकवर्ड क्लास के पीपल जी है। उनके ऊपर अन्य अत्याचारों की घटना लगातार होती आई है। आई। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में इस तरह की दलित घटनाएं होती थी या किसी के ऊपर बलात्कार होता था, किसकी हत्या होती थी, इस तरह की जो घटना होती थी, उसमें सरकार के प्रतिनिधि उसका समर्थन नहीं करते थे। या वो मरने वाला या बलात्कार किसके ऊपर हुआ है, जिसकी हत्या हुई है जाति धर्म के नाम पर, जिसमें दंगे हुए हैं, वो किस जात का है, ये हम लोग कभी देखा नहीं है सर। हम लोगों ने जो घटना घटी, क्योंकि सरकार है, सरकार चलाते समय इस तरह की कई सारी घटना आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की घटना जब घटती है तो सरकार और सरकार के लोग किस तरह की भूमिका लेती है सर। अगर जी। आप सरकार के कुछ प्रतिनिधि इस तरह की घटना घटती है तो उसका समर्थन करते हैं या हत्या करने वाले लोगों के साथ ताकत के साथ खड़े रहते हैं, तो ये चिंताजनक है सर, और हम इसका विरोध करते हैं। राइट। आई वांट टू, सुरेश चंद्र जी, आपसे एक पूछना है कि 26/11 वाज अ फेलियर। आप रिटेलिएट नहीं किए, मनमोहन सिंह जी कुछ रिटेलिएट नहीं किए, पूरा देश एकदम उदास था। मगर अभी बिना एक गोली चले आप देख रहे हो सड़क बॉर्डर के उस पार 1000 मदरसे बंद हो गया। वहां का ऐलान, वहां का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के कहा कि मदरसे बंद कर दो, वहां पर अटैक होने वाला है। फिर आगे कहा कि आप दवाई पानी 1-2 महीने के आप स्टॉक करके रखो, बिकॉज बहुत तकलीफ होने वाला है, जहां राशन पानी है, खाने की चीजें हैं और मेडिसिन है। तो आप किस प्रकार, और उसके बावजूद अगर जयराम रमेश जी हिसाब मांग रहे, हिसाब दो, तो क्या आप जल्दबाजी नहीं कर रहे राजेश जी? सर प्रदीप जी, हम जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं। आप ये जो मुझे गिना रहे हो वहाँ पे पीओक्यू में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या प्रभाव हो रहा है मोदी जी का, लेकिन हम ये सरकार के मुंह से सुनना चाहते हैं। हम तो आपके जैसे मीडिया के माध्यम से जो झूठे बातें होते हैं, हम लोगों ने टीवी पे देखा है 7 घंटे में पाकिस्तान का खात्मा होगा, 14 घंटे में पाकिस्तान को नेस्त नाबूद किया जाएगा, ये सारी बातें हम लोग मीडिया में सुनते हैं सर। तो मुझे ऐसे लगता है कि सरकार का कोई प्रतिनिधि आए और वो बताए कि भाई कश्मीर में हम लोग इस तरह की ये सारी चीजें किए हैं, इस माध्यम से हम कर रहे हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हो या आपकी जो भी प्लानिंग हुई है उसको लोगों के सामने रखे, लेकिन लोगों को एक विश्वास देने का काम सरकार का होता है, वो सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है सर। वो हम चाहते हैं कि सरकार सामने आए, लोगों को विश्वास दे और आगे बढ़े। या भले ही आपको विश्वास में ले या ना ले, आपके नेताओं को तो बुलाए, एटलीस्ट जो ऑल पार्टी मीटिंग एक बुला ले और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी रखे। क्या गलत बोला सुरेश चंद्र? अरे सर, हमने तो बोला था कि ये पुलवामा का जो आतंकवादी हमला हुआ है, उसके बाद पहलगांव का ये आतंकी हमला होने के बाद आप पार्लियामेंट का एक स्पेशल सत्र आयोजन करो। जी बोला, उसके ऊपर इसकी वो हो सकता है, चर्चा करो, वो शायद होने वाला है, और प्लानिंग करो यूनाइटेडली एक निर्णय। सुरेश चंद्र राजन जी, मैं आपको खबर दे देता हूं, होने वाला है। पांडे जी मैं बता देता हूं आपको, क्या गलत बोला सूरज चंद्र राजन जी? बोला अखबार प्रेस के माध्यम से बहुत बोल रहे, उधर ये अटैक हो गया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ये हो गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा आपका कि हमने ये किया, हमने वो किया? वो सही बोल रहे हैं पांडे जी, आपका जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आएंगे लोग कैसे विश्वास करें? देखिए राजीव जी और प्रदीप जी, मैं आपसे ये विनती करूंगा कि ये दोनों प्रवक्ता, माननीय कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के, दोनों ने मीडिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, और उसमें ऐसा नहीं कहा कि इक्का दुक्का मीडिया, उन्होंने सब हमने मीडिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया है। हम चाहते हैं ये सारी बातें हम मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं। यही बात जो मीडिया जो कह रही है, वही बात सरकार के प्रतिनिधि ने ऑफिशियल स्टेटमेंट करनी चाहिए। ये हमारी भूमिका, इसमें क्या गलत है?
आप मीडिया के और हमारे कांग्रेस के अपोजिशन के बीच में झगड़ा लगाने का काम मत कीजिए। झगड़ा तो लग चुका है सर। आप जिस लगा नहीं है विचारधारा क्या? चाहते हो वो विचारधारा सर की लगा नहीं लग है। चुका है उसमें मैं नया झगड़ा लगा होगा भाई, जो आपने बोला है और प्रजापति जी ने बोला वो रिकॉर्डेड है। जी, मैं जी। कुछ नहीं झगड़ा लगा रहा हूँ, मुझे जी। कोई जरूरत नहीं है। तो सर, आपने तो लेकिन माननीय उन्होंने बोला- लेकिन सुनिए लेकिन ना। हाँ प्रजापति जी, दिख गया सर। आप तो बड़ी वो जिसको कहते हैं सांस्कृतिक और संयम वाली हेडलाइन दिखा रहे हैं, यहाँ तो पता नहीं क्या क्या है, वो तो छोड़ो सर। हाँ बोलिए सर, पांडे जी बोलिए प्लीज। देखिए मेरा इतना ही कहना है, और इसीलिए मैं आदरणीय हमारे चाणक्य राजीव जी और प्रदीप जी से मैं निवेदन करता हूं कि इन दोनों प्रवक्ताओं की ये जो प्रश्न है मीडिया के ऊपर जो प्रश्न खड़े करे, इसका जवाब आप दीजिए। बाकी के आई डोंट विषय स्पीक में- फॉर द मीडिया, वी डोंट टॉक लाइक दिस सर। हम लोग सर, वो मीडिया आप जानो, उनको तो गोदी मीडिया Yes, बोलते हैं, आपकी yes. गोद में बैठे हुए हैं। हम कहाँ हैं सर, हम कहाँ से आ गए बीच में। लेकिन एक चीज बताइए पांडे जी, नहीं, मैं होता आपसे ऐसा है एक ना सवाल कि पूछा ठीक जा है, रहा तो है एक आध दो के बारे में बोले तो समझ में सर। आता है। एक आध दो सब- नहीं सर, एक सब आध दो गलत। नहीं, नहीं सर, एक आध दो नहीं। ऐसे बहुत- तो बहुत मैं भी एक आध चैनल देख रहा हूँ जो कि पिछले 4 साल से विश्व युद्ध करवा रहे हैं। उनके न्यूज चैनल पर रोज विश्व युद्ध हो रहा जी, है, आज बिल्कुल। शुरू हो जाएगा, आज शुरू हो जाएगा, आज शुरू हो दुरुस्त जाएगा। बात। तो क्या कर सकते हैं उसके लिए सर- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे अब मीडिया पे हम तो कोई ये नहीं कह सकते। ठीक सर है। एक छोटी सी बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, सॉरी आई एम मूविंग अवे फ्रॉम पहलगाम। एक छोटी सी बात सर, मुझे मालूम है सुरेश चंद्र राजन जी को पसंद नहीं आएगी बात ये। सर 1990 में जो अभी अभी प्रजापति साहब ने बात करी, प्रजापति साहब सुन रहे हैं आप? आर यू बिजी एल्सवेयर सर? प्रजापति साहब कैन यू हियर मी? एक सेकंड सर, प्रजापति जी। September 6, 1990, Mandal Commission report was accepted by Parliament and it was vehemently opposed. मंडल कमीशन की इंप्लीमेंटेशन को अपोज किसने किया सर? ऑफिशियली राजीव गांधी जी ने किया एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। सर उनकी पूरी स्पीच है ये लोकसभा में। जो आदरणीय सम्माननीय उस वक्त के विपक्ष के नेता थे, विरोधी पक्ष के नेता थे, राजीव गांधी जी ने उसकी इंप्लीमेंटेशन को टोटली उसका विरोध किया। तो सर पांडे जी, जहां तक आडवाणी जी का सवाल है, यह बात ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने प्राइवेटली कुछ भी किया हो, लेकिन मंडल कमीशन रिपोर्ट जब टेबल की गई प्रजापति जी पार्लियामेंट में, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उसका समर्थन किया था। और जो समर्थन विड्रॉ किया गया, ऑफिशियली विड्रॉ किया गया, क्योंकि अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई, उसके ऊपर विड्रॉ किया गया था। अब पांडे जी आप कुछ कहना चाहें तो बोलिए, उसके बाद मैं राकेश प्रजापति जी के पास जाता हूं। बोलिए सर प्लीज। बिल्कुल राजू जी, आप एकदम दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा पिछड़े समाज के साथ थे, हैं, रहेंगे, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने ये जनगणना लाई है पिछड़े वंचितों के न्याय दिलाने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। अभी जो बातें हो रही थी, मैं उसमें इतना ही कहूंगा कि अगर आपका मन साफ था, आपका दिल साफ था कांग्रेस का, तो कांग्रेस ने इस देश को 65 सालों तक राज किया। तो फिर राजीव गांधी ने मंडल कमीशन का विरोध क्यों किया? एक बात। दूसरी बात, 1930 से लेकर अभी 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। 2014 के पहले लगातार 10 साल कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उसके पहले इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। क्यों नहीं फिर उन्होंने जातीय जनगणना लाया? 1931 के बाद क्यों नहीं लाया? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये कांग्रेस के सामने खड़ा है, और कांग्रेस के साथ जो सरकारें थे उनके सामने खड़ा है। ये अपने भी गिरेबान में झांक के देखना चाहिए ना। आपने तो किया नहीं, आपने हमेशा विरोध किया, और उसके बाद आज हम कर रहे तो आप उस पर उंगली उठा रहे। सर एवरीबॉडी लर्न समथिंग न्यू। सर हर ये तो गलत बात है। इसके लिए आपका जो पोल है वो पोल खुल चुका है, आपका ढोल फट चुका है। ऐसी बात नहीं है सर, शैलेश पांडे जी, ऐसी बात नहीं है। शैलेश पांडे जी, हर एक कोई नई चीज सीखता है। और मैं महात्मा गांधी को कोट कर रहा हूं। गांधी जी से यह पूछा जाता था कि यार पिछले हफ्ते तो आपने ये कहा, आज आप ये कह रहे हो। कहता है दिस वीक आई हैव लर्नड समथिंग न्यू, कि मुझे अब नई चीज मुझे सीखने को मिली है। वही कांग्रेस का हाल है सर, कांग्रेस को नया कुछ सीखने को मिला है ना। हाँ पांडे जी बोलिए। मैं आता हूं आपके पास सर। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई। हाँ बोलिए सर, बोलिए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोलते हुए तुष्टिकरण की बात कर रहे थे कि अगर इसको पीट दिया उसको पीट दिया। मैं सबसे पहले ये पूछता हूं
कि कश्मीर में जो आतंकवादियों को ये पूछ पूछ के मारा गया कि तुम हिंदू हो, तुम्हें कलमा पढ़ना आता है, पैंट उतार के देखी गई, तब उनके सिर में गोली मारी गई। उनके जो माँ थी, बीबी थी, बेटियां थी, उन्होंने बोला, उन्होंने न्यूज चैनल पे आके बताया कि हमसे हमारी ये पूछा गया कि तुम हिंदू हो, कलमा पढ़ने को कहा गया। ये किसने कहा? न्यूज चैनल के ऊपर सबसे पहले विक्टिम्स ने, जो आतंकवादी हमले में मारे गए शहीद, उनकी पत्नी ने, उनकी मां ने, उनके घर वालों ने, वो चीख चीख कर, रो रो कर, बिलक बिलक कर न्यूज चैनलों पे बोला। पहलगाम से आने के बाद अपने जो अपने अपने गांव में आए, कोई यूपी में, कोई महाराष्ट्र में, कोई कर्नाटक में, डोंबिवली में हमारी बहनों ने कहा, कर्नाटक में कहा, उत्तर प्रदेश की वो जो द्विवेदी परिवार की कानपुर की थी, उन्होंने कहा, सबने वहां के मुख्यमंत्रियों को बताया कि हमको हिंदू बोल के मारा गया। उसके बावजूद भी शरद पवार जी हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, उसके बाद कांग्रेस के बहुत सारे वड़कतीवार हो, ये कहते हैं ये बीजेपी वाले हिंदू हिंदू क्यों कर रहे हैं, ये हिंदू मत करो, ऐसा बोला ही नहीं गया, हिंदू मुसलमान किया ही नहीं गया। अरे विक्टिम अपने आप स्वयं बताए सबसे पहले सारे न्यूज चैनलों पे कि हमसे हमारा धर्म पूछा गया, दुरुस्त हिंदू बात है। पांडे हिंदू जी, बोल के मारा गया। पांडे ये जी, कितना बड़ा जघन्य अपराध किया गया। ओवैसी, इसके बावजूद भी आप विक्टिम की ओवैसी, बात मानने को तैयार नहीं हो। ओवैसी ने आपको कहा कि आप सिर्फ घर में घुस के मारो मत, घर में घुस के वहां बैठ जाओ। लोग आपको कह रहे हैं घर में घुस के वहां बैठ जाओ, पीओ के वापस ले लो। ओवैसी जी, जो आप बैरे के मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कह रहे हैं कि आप पीओ के में घुस जाओ, पीओ के वापस ले लो, वहां पर बैठ जाओ, घर में घुसो मत, घर में घुस के बैठ जाओ। एक्शन, सबके पेशेंस, पांडे जी पेशेंस, वेरी फ्रैंकली पेशेंस बहुत कम है सर, बहुत बहुत आगे सब्र पूरे का बात देश टूट रहा है। पूरे, जैसे सुरेश चंद्र राजन सिंह ने कहा, प्रजापति साहब ने कहा, सब लोग ने कहा आपसे कि हम आपके साथ है, साथ है, साथ है। एक्शन लीजिए पांडे जी। जैसे वो कह रहे कि प्रेस के माध्यम से हम कुछ सुनना नहीं चाहते, हम ऑफिशियल स्टेटमेंट चाहते हैं। पांडे जी, ऑफिशियल स्टेटमेंट कब आएगा? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। मेरे नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आतंकवादियों, जिनका दिमाग, जिनका जमीन इस आतंकवादी हमले में इस्तेमाल किया गया है, वो दुनिया के किसी भी छोर पर है, उनको घुसकर मारा जाएगा, उनको खत्म किया जाएगा। और जिनकी जमीन, जिनका दिमाग जो इसमें शामिल है, वो जमीन दोस्त की जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय सेना हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर अपना वहां पर अभ्यास जारी है, और जल्द ही जल्द आप देखेंगे भारतीय सेना इस आतंकवादी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगी। और मैं ये कहता हूं कि हमें हमारे भारतीय सेना के शौर्य पर और कार्रवाई पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। मैं यही बार बार कहूंगा कि राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात देकर राष्ट्र विजयी हो हमारा, और हमारे भारत की विजय होगी। हम इस आतंकवाद का कमर तोड़ेंगे, क्योंकि इस बार का जो आतंकवादी हमला हुआ, वो आतंकवादी हमले को मैं एक तरह का पाकिस्तानी इस्लामिक जिहादी आतंकवादी हमला कहता हूं, क्योंकि वो हिंदुओं को टारगेट करके पूछ कर कलमा पढ़ा कर दिया गया। और मुझे दुख है इस बात का, बहुत दुख है, पूरा देश में दुख है। आज हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, आज देखिए किस तरह से कलमा पढ़ाया गया, और आज लोग जो औरंगजेब के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, ये इनके राम जी सर यहाँ पर शैलेश पंडित जी, एक छोटी सी बात है, आपसे विनती कर रहा हूं, आप जरा नरेंद्र मोदी जी की तो भाषा सुन लीजिए ना। आप जो बार बार एक ही चीज को जो दोहरा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने खुद बोला है कि हिंदू मुस्लिम ना करें, हिंदू मुस्लिम की बात ना करें, नरेंद्र मोदी जी ने खुद बोला है। क्योंकि जब आप ऐसी बात करते हैं, और तो और छोड़िए, पहलगाम जाकर के जो पहली स्टेटमेंट आई अमित शाह साहब की, आप बोले तो मैं आपको भेज देता हूं। उन्होंने कहा है कि इस इंसिडेंट को बार बार आप ना दोहराएं, क्योंकि पाकिस्तानी आईएसआई चाहती है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में लड़ाई कराना, तो कृपा करके ये सब ना बोलें। ऐसा आपके नेताओं ने बोला है सर। देखिए राजू जी बोलिए सर। हिंदू या हिंदू मुसलमान भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, न भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकर्ता करता है। ये बात कहां उठी, मैं ये पूछता हूं। जब सारे जो विक्टिम से, जो आतंकवादी के गोलियों से शहीद हुए, उनके बीवियों ने, परिवारजनों ने, माओं ने जब अपने
टीवी पे आके बताया कि उन्हें हिंदू कह के मारा गया, हिंदू मुसलमान को अलग किया गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के वड़ट्टीवार शरद पवार, रॉबर्ट अरे वाड्रा का यार, ये कितना बात हो क्यों रहा है ये स्टेटमेंट बात आया? तो। नहीं, क्यों स्टेटमेंट आया? प्रजापति ये मुसलमानों के पक्ष की बात क्यों करने लगे कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है? इसमें हिंदू हिंदू ये कोई बात ही नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई है। उनको कहने की जरूरत क्या थी? मैं ये पूछता हूँ, उनसे Right. कौन जाके प्रजापति पूछा था? साहब, जो जातीय जनगणना का ऐलान करना, अखिलेश यादव जी स्वागत करना, सेलिब्रेट करना, आपका विजय, अखिलेश यादव जी ने कहा ऑपोजिशन का विजय, यादव ठीक है, मगर बीजेपी का आरोप है कि आपने पोस्टर में अखिलेश जी और अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जिस प्रकार से मिसयूज किया उस पोस्टर में, वो एक गलत तरीका है कि अखिलेश यादव जी इक्विवेलेंट टू डॉक्टर अंबेडकर। आपने ऐसे पोस्टर के माध्यम से ऐलान कर दिया और पूरे सेंट्रल मिनिस्टर बीजेपी के आरोप लगा दिए, ये गलत है। मिसयूज ऑफ डॉक्टर अंबेडकर ये गलत है। प्रजापति साहब, प्रदीप जी, ये वो लोग हैं, ये ठीक है, वो एक कार्यकर्ता का गलती थी। उस कार्यकर्ता को बुला करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समझा भी दिया है और आगे से संदेश भी दे दिया है कि इस तरीके की गलती ना करें। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, अमित शाह जी का फोटो सरदार पटेल के बराबर में छपा हुआ है, प्रधानमंत्री जी मोदी जी रामलला को छोटा सा बच्चा बना करके लेके जा रहे हैं, हनुमान जी को गोदी में खिला रहे हैं प्रधानमंत्री जी, हनुमान जी का रूप धारण किए हुए हैं, भगवान राम का रूप धारण किए हुए हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरे पर तो कीचड़ उछालते हैं लेकिन अपने ऊपर कीचड़ उछालने का काम नहीं करते। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न राजीव जी ने मुझसे किया था, मैं आज उसको क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। प्लीज गो इट। राजीव जी ने कहा था कि मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट लागू हुई थी तो राजीव जी के नामा राशि राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री जी ने उसका विरोध किया था उस समय पर। मैं मानता हूं उस समय पर कांग्रेस से गलती हुई थी, इसलिए मानता हूं कि हाँ, आज बात जो चल रही कि 65 साल पहले कांग्रेस, 7 साल लगभग कांग्रेस ने शासन किया और जातीय जनगणना नहीं कराई। लेकिन आज राहुल गांधी जी ने, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे जो तेलंगाना हो, इन तीनों प्रदेशों में जातीय जनगणना करा करके उस गलती को मान करके या पश्चाताप करके आज वहां पर पिछड़ों के आरक्षण को 23 से 42%, 23 से 45%, 23 से 47% करने का काम किया है। मैं शैलेश पांडे जी को चुनौती देता हूं कि अगर वास्तव में ये सही मनोदशा से इसको लागू करना है तो इनके जो 21 राज्य हैं जहां पर इनकी सरकार है, इन 21 राज्यों में जातीय जनगणना के सर्वेक्षण करा करके जिस प्रकार से कांग्रेस ने ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने का काम किया है वही काम करे। दूसरी बात मैं कहता हूं कि लाल कृष्ण, मैं डेट वाइज आता हूं। देखिए, सबसे पहले मंडल कमीशन लागू हुआ 10 अगस्त 1990 को जी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट तो लागू हुई, वो 10 अगस्त 1990 को लागू हुई। उस समय प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह और उस समय भाजपा के समर्थन से, बाहरी समर्थन से थे। लेकिन सोचिए, अंदर तो इन्होंने समर्थन किया, ये बात ठीक है, अंदर समर्थन किया, लेकिन 10 अगस्त के बाद 25 सितंबर को लाल कृष्ण आडवाणी इसी मानसिकता को लेकर के सीधे विरोध करेंगे तो पिछड़ा नाराज हो जाएगा, कमंडल यात्रा लेकर के निकल गए और कमंडल यात्रा इन्होंने शुरू की 25 सितंबर 1990 को। जो राजीव जी आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा कार सेवकों वाला, और ये 25 सितंबर 1990 को, और कार सेवकों को, ये कार सेवक नहीं होती है घटना, ये लाल कृष्ण आडवाणी की वजह से हुई थी, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी इसे पिछड़ों का विरोधी नहीं बताना चाहते थे, इसे केवल हिंदुत्व में कन्वर्ट करना चाहते थे। इसीलिए 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर गोली चली थी और आरोप रखते हुए कि देखिए हिंदुओं को, जैसे कि अब पहलगाम में हो रहा है कि हिंदू देख करके मारा गया, वही ये घटना हुई थी कि पिछड़ों पर
का जो ध्यान भटकाने के लिए फिर से इन्होंने ये किया कि 30 अक्टूबर 1990, तीनों डेट बता दी मैंने, 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर गोली चली, और इन्होंने ये कहते हुए कि कार सेवकों पर गोली चलाई है हम समर्थन वापस लेते हैं, लेकिन ये समर्थन कार सेवकों की गोली के लिए नहीं था, ये समर्थन मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के कारण था, क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने से पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को, और जिन्हें सैकड़ों नहीं हजारों सालों तक शिक्षा से दूर रखा गया। अभी जेतवा फुले की एक फिल्म आई हुई है जिसका विरोध प्रदर्शन कौन लोग कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। आखिर उस फिल्म में सब कुछ सच्चाई दिखाने का काम किया गया है। इन लोगों ने हम लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को सदियों तक, हजारों सदियों तक जो है शिक्षा से महरूम रखा, संपत्ति से महरूम रखा, अन्य संसाधनों से महरूम रखने का कार्य किया, वो भी सारा पूरा देश जानता है। सुरेश चंद्र राजन जी, राजू जी मैं इनका जवाब एक पॉइंट पे देना चाहूंगा। हाँ, एक पॉइंट में दे। एक पॉइंट, ये जो बार बार कह रहे हैं हिंदुत्व के लिए और कमंडल यात्रा, मैं आपके चैनल पे बहुत ही जवाबदारी से इनके इस शब्द का मैं खंडन करता हूं, निषेध करता हूं। इस तरह से श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण रथ यात्रा का ये अपमान कर रहे हैं, और एक हिंदू के नाते मैं ये आपके चैनल पे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मैं चाहूंगा ये अपने शब्द वापस लें। मैं इनके बातों का खंडन करता हूं। उसको ससम्मान आप कहिए। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे मैं वापस इसलिए नहीं ले सकता, रामचंद्र जी की, मैं शैलेश पांडे जी इसलिए वापस नहीं ले सकता कि इस देश में कमंडल चलता था, इस देश में झाड़ू चलती थी, इस देश में कमंडल चलता था, इस देश में झाड़ू चलती थी, इसलिए मैं अपने शब्द वापस नहीं ले सकता। रथ यात्रा थी वो। भगवान राम 550 साल तक जिनका मंदिर बनने नहीं दिया आप लोगों ने, आपने विरोध किया, कार सेवकों की हत्या किया आपने। आज 550 साल के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर का निर्माण जन्मभूमि अयोध्या में आज हुआ। आज इसके लिए कितना बड़ा संघर्ष हुआ, और आडवाणी जी के नेतृत्व में कोर्ट के आदेश से हुआ है, वो कोर्ट के आदेश से हुआ है, कोर्ट के आदेश से हुआ है, आपके इससे नहीं हुआ है, कोर्ट के आदेश से हुआ है, कोर्ट के आदेश से हुआ है। लोग इसी तरह से भगवान श्री राम का जिंदगी भर अपमान किए, हिंदुत्व का अपमान किए। मैं घोर निंदा करता हूं आपके वक्तव्य का। आप अपना वक्तव्य वापस लीजिए, ये गलत बात है। वो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे आराध्य देव के मंदिर निर्माण की रथ यात्रा थी, हमारे लिए पवित्र धार्मिक यात्रा थी। आप हमारे हिंदू धर्म के पवित्र धार्मिक यात्रा का मजाक मखौल नहीं उड़ा सकते इस तरह से। तो उसमें कमंडल यात्रा कहने में प्रॉब्लम क्या है सर? मुझे तो कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं, मैं तो हिंदू हूं। शैलेश पांडे जी, राजीव जी मैं बोल रहा हूँ। शैलेश पांडे जी एक मिनट सुन लीजिए, शैलेश पांडे जी, शैलेश पांडे जी सुन लीजिए। बोलिए सर, बोलिए। प्रजापति जी, प्रजापति जी को बोलने दीजिए सर, एक सेकंड प्रजापति जी को बोलने तो दीजिए सर, एक सेकंड। लेट अस सी व्हाट यू आर इस देश में सर हो सकता है आप उनके उत्तर से संतुष्ट हो जाए। शैलेश पांडे जी सुन लीजिए। बोलिए प्लीज बोलिए प्रजापति जी। क्या इस देश, आप पूरा बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा, इंटरप्ट नहीं करूंगा। नहीं आप बोलिए ना। क्या इस देश में कमंडल और झाड़ू नहीं चलता था? क्या इस देश में, मैंने एक दिन आप नहीं थे डिबेट में खुद बोला था, आज भी बोल रहा हूं उसी सेंटेंस को, इस देश में मंडल यानी कि जो घड़ा है मटका, उस मटके को बनाने का काम कुम्हार द्वारा किया जाता था, लेकिन उसी मटके से पानी पीने की हैसियत नहीं थी उस कुम्हार की जब किसी उच्च जाति के घर पर बैठ जाता था। ये ऑन डिबेट कह रहा हूं मैं इस बात को, अगर गलत हो तो बता दीजिए। ऑन डिबेट इस बात को कह रहा हूं। कमंडल क्या पहना नहीं जाता था? हम उनके हाथ का पानी पीते थे, मेरे घर में खुद कुमार पानी देते थे, हम पीते थे उनके पानी। क्या बात करते हैं आप? शैलेश पांडे जी, सुरेश चंद्र जी, I know, he's going there. आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, aspect, आप झूठ बोल रहे हैं। dimension, new dimension। आप पहले माफी मांगिए भगवान श्री रामचंद्र जी के। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं दोनों ही चीजों पर नहीं माफी मांगूंगा, बिल्कुल नहीं माफी मांगूंगा। आप कमंडल यात्रा कहते हो, आप कमंडल यात्रा कहते हो, आप कमंडल यात्रा कैसे कहते हो भैया? तो सर शैलेश पांडे जी एक चीज तो बता दीजिए सर, विनती है आपसे, आ रहा हूं सुरेश चंद्र राजन जी आपके पास आ रहा हूं सर। जब फायरिंग हुई 1990 में, 1990 में फायरिंग हुई अपने लोगों के ऊपर सर, और उसके बाद जा करके चंद्रशेखर जी की सरकार बन गई यहाँ पे वगैरह वगैरह वगैरह, तो सर उस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी साहब जो थे जिन्होंने एक्चुअली फायरिंग ऑर्डर करी,
उनका नाम था नृपेंद्र मिश्रा। आज नृपेंद्र मिश्रा राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चेयरमैन है सर। कुछ कहना चाहेंगे इस विषय के बारे में सर? राजीव जी, बिना मुख्यमंत्री के राय सलाह और बिना मुख्यमंत्री के आदेश के कोई सेक्रेटरी ऐसा और गोली चलाने का ऑर्डर दे सकता है क्या? नहीं, पूछ रहा हूँ कोई सर, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, बच्चा नहीं हूँ सर, आपसे पूछ रहा हूँ। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश के बिना कोई सेक्रेटरी गोली चलाने का ऑर्डर नहीं दे सकता था। मना भी कर सकते थे। आदेश मुख्यमंत्री का था। मना भी कर सकते मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री सर मना भी कर सकते थे। ही कुड हैव रिजाइन कर देते। अगर असल में राम भक्त थे, जैसा कि उनके बारे में आज कहा जा रहा है कि बहुत बड़े राम भक्त है, इस्तीफा दे देते कि भाई आई विल नॉट डू इट। इस्तीफा दे सकते थे, इस्तीफा दे सकते थे। करेक्ट। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अपने बात को स्वीकार भी किया था। किया था, को कहीं किया था कि उनसे सर किया है। दो इंटरव्यू दिया था, 2 इंटरव्यू दिए उन्होंने, एक मुझको भी दिया। मैं राजू जी हाथ जोड़ता हूँ, हिंदुत्व का अपमान सर कोई नहीं कर रहा। सुरेश चंद्र जी, आप कुछ कहना चाहते हो? थोड़ा डायमेंशन, नया डायमेंशन सुन ले। एक मिनट। शैलेश पांडे जी, मैं आपको व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ। राकेश प्रजापति जितना बड़ा राम भक्त और कोई नहीं होगा, ये भी आपको बता दूं मैं। आप आराम से रहिए सर, टेंशन मत लीजिए। सुरेश चंद्र जी बोलिए, आप दोनों असल में एक साथी हैं। ये बोलिए सुरेश चंद्र जी, बोलिए नया डायमेंशन क्या है इसमें, बोलिए। मैं इतना चाहता हूँ। अरे सुनिए पांडे जी, सुनिए ना, नया डायमेंशन तो सुनिए ना। सुरेश चंद्र जी बोलिए। सुनिए ना, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कमांडर अरे यात्रा पांडे जी, नया डायम उनका तो बोलने दो। आप बोल रहे आधा घंटे से बोल रहे सुरेश चंद्र राजन जी को बोलने दो। बोलो सुरेश चंद्र जी। मैं एक लाइन, एक शब्द बोलता हूँ, एक शब्द। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण यात्रा आप कहिए, बस ये बोलिए। सुरेश चंद्र जी बोलिए आगे। सुरेश चंद्र जी बोलिए। सर मुझे सबसे पहले ये बात कहनी है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से जाति धर्म की राजनीति की है। आपने ये देखा होगा कि अभी ये बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव जी के बराबरी का फोटो अंबेडकर जी का लगा के उसका अवमान किया है। हाँ, लेकिन आपको मालूम नहीं, ये बीजेपी का आरोप है। लेकिन आपको मालूम होगा कि अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से स्टेडियम हुआ करता था, जिसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया गया। उस वक्त उस महापुरुष का अवमान हुआ नहीं है क्या? उसके साथ साथ जब यहाँ देश का किसान विरोधी 3 काले बिल के खिलाफ दिल्ली में बॉर्डर में आंदोलन कर रहा था, उस वक्त इनके सरकार के कई मंत्रियों ने उनको नक्सलवादी कहा था। क्या उस वक्त वो इस देश के 65 करोड़ किसानों का अपमान नहीं था क्या? इसके लिए नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार को माफी मांगनी चाहिए सर किसानों की। लेकिन ये नहीं करते हैं सर, क्योंकि पांडे जी एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिस पार्टी ने पीढ़ियों से सदियों से जातिवाद को बढ़ावा दिया है और जातिवाद का ही राजनीति की है। और ये बात करते हैं जाति न्याय जनगणना की। अरे भाई साहब, मंडल आयोग की जो आप बात करते हो, लेकिन आपको एक बात ध्यान में लेनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक अगर किसी भी मोदी सरकार के किसी मंत्री ने या मोदी साहब ने खुद भी अगर कल जाति न्याय जनगणना का आदेश लागू करने के पहले कभी भी जाति न्याय जनगणना की बात की है क्या? अगर आपके पास कोई ऑफिशियल ऐसा स्टेटमेंट है तो हमको बताओ। नहीं की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी आज जाति न्याय जनगणना करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी ये राजकीय जरूरत बन गई है। बिहार के इलेक्शन सामने है, उसके बाद पश्चिम बंगाल के इलेक्शन सामने है, और ये सारे मुद्दे देखते हुए इस तरह का ये राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किया हुआ स्टेटमेंट है। और आपको मालूम है 2011 में सर्वे हुए थे, इंपेरिकल डेटा सरकार के पास है। अलग अलग स्टेट में इन पिछड़ों वर्ग के बारे में पॉलिसी बनाने के लिए इंपीरियल डेटा के बारे में पूछा जा गया था। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को 11 बार पत्र लिखा है, केंद्र सरकार ने वो डेटा रिलीज नहीं किया है सर। ये केंद्र सरकार का दोगलापन है सर। और ये बात करते हैं, और मुझे और आपने भी प्रेशर नहीं डाला है। और सर हम तो प्रेशर डालते हैं। आज मुझे बात करने दीजिए पांडे जी, मुझे बात करने दीजिए। आज भी आज भी जाति न्याय जनगणना का निर्णय इन्होंने लिया, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जाति न्याय जनगणना के इस मुद्दे को लेकर इसके ऊपर पूरे देश में एक माहौल बनाया, एक आंदोलन चलाया।
और आंदोलन में देश के देश जनता ने जलाने इतना का। प्रभावित है। अरे भाई साहब, मुझे बात करने दो। जी बोलिए 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 सुरेश चंद्र जी हाँ। बोलिए, उसके बाद आप क्या पांडे जी समझते हैं? बोलेंगे। अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। बोले ना बोले ये प्रवक्ता को ना उसकी पार्टी की लाइन मालूम है, ना उसके नेता का या नरेंद्र मोदी जी की भूमिका मालूम नहीं है। आके हाँ। बैठे हिंदू मुस्लिम कर रहे। हमको राहुल अरे गांधी भाई, की भूमिका भाई- मालूम है। भाई साहब, भाई- जाति भाई साहब, भाई साहब, जाति भाई साहब, जनगणना के लिए देश देखो, को जलाने की जो इस तरह भूमिका के थी ना, इस तरह की वो बातें हमको मत करो मालूम आप। है अच्छी तरह से। अगर हम वो बात कर रहे हैं, जाति हमारी भूमिका देश रख रहे को हैं, तो जलाने हमको की, बोलने दीजिए। देश जब को आप बात जलाने कर रहे थे की तो हमने कभी जो भी आपको उनकी टोका नहीं योजना है। थी, आप और बात जो करते हैं, नीयत अरे थी, बाबा साहब वो आम्बेडकर की नीयत सम्मान थी, की बात हमको करते मालूम हैं, है। प्रजापति दलितों के सिंह, सम्मान शायद की आप बात जाना करते चाह हैं। रहे हैं। अरे आपको ये शोभा और नहीं Thank देता you है? very much, gentlemen. I want to go. जी सर अरे सर, क्या है ये? आई एम श्योर सर। मुझे इनका सर यू जवाब- वांट टू गो और डू यू हैव टू गो? अरे सर मुझे राकेश प्रजापति जी, इनका जवाब देना। वन सेकेंड, क्वेश्चन फॉर राकेश प्रजापति जी। हाँ। सर इट्स अ ग्रामेटिकल क्वेश्चन। डू यू वांट टू गो और डू यू हैव टू गो? I प्रजापति want to जी, go. you want to go. That's rather sad because I love your company. Very frankly speaking, I love your analysis. I have told you that so many times. Thank you very much for joining us, sir. Great pleasure. Thank you very much, sir. नमस्कार जी। आप कुछ बोल रहे थे? सुरेश चंद्र जी कुछ बोल रहे थे? पांडे जी सुनिए ना, उसके बाद आप कंप्लीट कीजिए ना। सुरेश चंद्र जी बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, yes, हाँ, yes, बोलिए फर्स्ट बोलिए क्लास बोलिए। पांडे जी भी सुन रहे हैं आप? बोलिए बोलिए। ये बोलते हैं कि 1931 के बाद इस देश में इस तरह की ये हुई नहीं है। जी, तो नहीं। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि इस देश को संविधान कांग्रेस पार्टी ने दिया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में इस देश को संविधान दिया, और उस संविधान ने रिजर्वेशन की प्रोविजन की, और रिजर्वेशन के माध्यम से समाज के अलग अलग जाति वर्ग को रिजर्वेशन लागू करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और रिजर्वेशन के कारण एक समय ऐसा था, कई समाज के मुख्य धारा में आने का मौका नहीं मिलता था। आज वो लोगों को मौका मिला, वो सशक्त बनते गए। लेकिन ये लोग बार बार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने दलितों के साथ या जाति के नाम पे राजनीति की, लेकिन हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। हमारी तो स्पष्ट भूमिका, इन सारे लोगों को हम मेनस्ट्रीम में लाना चाहते हैं, उनको मौका देना चाहते हैं, लेकिन ये लोग उसको भी, उनका देखने का नजरिया अलग है। तो मुझे ऐसे लगता है कि पांडे जी, आपको जाति धर्म से अलग होकर, आज भारतीय, अगर आज समाज में कोई उपेक्षित है, वंचित है, दबा हुआ है, उसको जाति न्याय जनगणना करने से अपने पास एक फिगर आ जाएगी, और लोक संख्या के आधार में हम उनको हिस्सेदारी में भागीदारी, ये सारी चीजें दे सकते हैं। लेकिन आप वो सुनते ही नहीं। राहुल गांधी जी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया? मुझे ऐसा लगता है कि अरे आप सरकार के प्रवक्ता हो, सरकार इन सारी चीजों में क्या कर रही है, इसके बारे में हमको बताना चाहिए। अगर आप सचमुच में दलितों के हित का काम कर रहे हो, दलितों के कल्याण की योजना ला रहे हो, तो आप बोलो ना, मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने लेके आओ। आप हिंदू मुस्लिम की बात मत करो, राम मंदिर की बात करो, ये सारी चीजें मत करो आप। जी, और यहाँ पर पांडे जी एक छोटी सी बात है कि मंडल कमीशन ठीक है आई वीपी सिंह साहब के वक्त, लेकिन इंप्लीमेंट हुई इंदिरा सानी केस के बाद। आपको याद होगा, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट वाज 1992। उसके बाद 1993 में नरसिम्हा राव सरकार के दौरान ये इंप्लीमेंट हुई, और 2006 में मनमोहन सिंह साहब की सरकार के दौरान 27% कैप लगाया गया अदर बैकवर्ड क्लासेस पे, और 22% कैप था एससी और एसटी पे, ताकि 49% रहे, 50% के ऊपर ना आए। और अभी डिमांड है, ये बहुत सीरियस मैटर है सर पांडे जी, बहुत सीरियस मैटर है। अभी क्या है कि कांग्रेस डिमांड कर रही है कि 50% कैप हटा दिया जाए। अगर आप 50% कैप हटा देंगे तो जनरल कैटेगरी के लोग कहां जाएंगे सर? इस विषय के बारे में जरा बताइए, सोचिए सर इसके बारे में। अगर बता नहीं सकते तो सोचिए जरूर। पांडे जी अब आप बोलिए प्लीज। मैं राजीव जी बोलिए सर। देखिए, कांग्रेस पार्टी की इस वक्त जो परिस्थिति है जी। जातीय जनगणना को लेकर, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नूची की तरह है। क्योंकि जिस तरह से पिछले कई दिनों से राहुल गांधी जी समाज के अंदर जो बयान दे रहे थे, जो कार्य कर रहे थे, जो लोगों को उकसा रहे थे, एक तरह से वो देश को जलाने का कार्य कर रहे थे, क्योंकि उनका काम हमेशा से भड़काने का रहा है। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने जाति जनगणना घोषित किया, आज उनके हाथ से एक मुद्दा छूट गया। तो ये उनकी तड़फड़ाहट है, छटपटाहट है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, छाती ठोक के बताता हूं, गर्व से बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से, इन्होंने कहा सदियों से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों और दलितों के विरोधी रही। अरे 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, 1954 में भारतीय जनसंघ आया,
उसके पहले तो नहीं थी। 1954 के पहले तो न आरएसएस था, न जनसंघ था, न भारतीय जनता पार्टी थी। लेकिन 1980 के भारतीय जनता पार्टी के बनने के बाद हमने आज इस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ओबीसी समाज के हैं, पिछड़ा समाज के जी। हैं। भारतीय जनता पार्टी के कारण ही इस देश की महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी समाज की हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ही इस देश में दलित समाज के राष्ट्रपति माननीय को राष्ट्रपति बनाया आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के रूप में। जी। इस देश के अल्पसंख्यक समाज के रूप में देश के मिसाइल मैन वैज्ञानिक आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम को इस देश का सर्वोच्च पद दिया राष्ट्रपति का। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ओबीसी है, पिछड़े समाज से है, और पिछड़ा हो, दलित हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो, सभी समाज के लिए नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की नीतिगत रूप से काम कर रही है, काम करती रहेगी। और उसी धारा में ये जातिगत जनगणना Wonderful. हम लाए हैं ताकि सभी समाज को हम सही स्थान दे सके, न्याय दे सके, सामाजिक न्याय कर सके, और जनरल कैटेगरी के लिए भी जो भी लोग गरीब हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, हमने ESW जो हमने EWS, जी हाँ, जी। EWS दिया, हम सभी वर्ग को साथ में लेकर। लेकिन ये जो बार बार कहते हैं हम दलितों का विरोधी है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जो 5 स्थान, जन्म स्थान, कर्म स्थान, दीक्षा भूमि और उनकी चैत्य भूमि, सबका रीडेवलपमेंट, पुनर्निर्माण, सौंदर्यीकरण करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एक का सवाल। अपमान किया, इलेक्शन हरवाया, सर, वो तो बहुत नेताजी लंबा हो सुभाष जाएगा। चंद्र बोस का अपमान किया। सर, लेकिन वो लंबा- भारतीय जनता पार्टी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, सर, लंबा हो जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हो, स्वतंत्र वीर सावरकर हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहली हो, बार मैं देख रहा हूं पांडे जी को। सभी को न्याय दिया, सभी को न्याय दिया, सभी को सैल्यूट करते हैं। पांडे उनके जी, एक छोटी सी विचारधारा पर बात। हम काम कर रहे हैं। एक छोटी सी बात पांडे जी, सर, पहली मैं बार में, एक अरे खत्म करूंगा। राजन जी एक सेकंड सर, मुझे पर्सनल बात करनी है, कुछ व्यक्तिगत बात करनी है पांडे जी से। पहली बार पांडे जी, जब आप इस शो में अभी आज जो आए, आप शुरू हुए तब तक तो ठीक था। उसके बाद मैं गिन रहा था, आपने कोई 26 बार मोदी जी का नाम लिया है। पहली बार मैं देख रहा हूं आपने उनको यशस्वी प्रधानमंत्री नहीं बोला है। ऐसा कैसे? ये चेंज हो गया, टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई क्या? पहली बार मैं देख रहा हूं, सच बोल रहा हूं मैं। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, और पहले तो आप हमेशा बोलते हमारे सम्मानीय यशस्वी प्रधानमंत्री देश के। सर क्या हो गया सर? आज एक भी बार नहीं बोले पांडे जी। देख, 2 बार बोला, बिगिनिंग में 2 बार बोला, उसके बाद नहीं बोला। क्या डॉक्टर ढोने की बात क्या लग गई? अरे क्या हो गया सर? आपके मुंह से बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूं, बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज क्या हो गया सर? अब यशस्वी नहीं रहे क्या, या आप भूल गए? राजू जी, वो हमारे सर डोंट टेक मी सीरियसली, सर डोंट टेक मी नहीं, सीरियसली, आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग। अरे सर मैं मजाक कर रहा हूं, छोड़िए ना, क्या बात कर रहे हैं? ये वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है। जी, और सबको अब तो मालूम है। अब तो सबको वो मालूम है। यशस्वी से बढ़कर युग पुरुष है, महापुरुष जी है। जी जी, वेरी गुड सर। आज आप वन फाइनल वर्ड टू यू सर। आज आप राजन जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप? वेरी क्विकली सर, बोलिए सर प्लीज। नहीं सर, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये जो बोल रहे हैं कि हम लोगों ने अलग अलग जाति धर्म के लोगों को देश का सर्वोच्च स्थान दिया, जी दिया। लेकिन आपने देखा होगा, हमको उसका अभिमान है सर, हम उसके लिए इनको अप्रिशिएट करते हैं सर, इनकी सराहना करते हैं। लेकिन जब हमारे देश के संसद भवन का उद्घाटन किया जाता है, उस वक्त हमारे राष्ट्रपति को बुलाया नहीं जाता, क्योंकि वो एक आदिवासी समाज से हैं। इस तरह की सोच लेकर ये जो काम करते हैं, ऐसी कई घटनाएं सर। इन्होंने अभी बात की आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि अम्बेडकर जी का ब्यूटिफिकेशन करने का काम। भाई साहब, आपको मालूम नहीं होगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के स्मारक का ब्यूटिफिकेशन का काम नहीं है, वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का स्मारक बन रहा है, और वो बहुत ही भव्य होगा, जिसका पूरे वर्ल्ड में नाम होगा। और आप ब्यूटिफिकेशन की बात कर रहे हैं सर, वो गुस्से में। और सर दूसरी बात ना जी, इन्होंने ना स्मारक का मुद्दा निकाला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनके जिनको ये अभी यशस्वी पंतप्रधान नहीं बोलते हैं, वो उन पंतप्रधान ने मुंबई में आके अरबी समुद्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक का उद्घाटन किया था सर। आज तक उस
अरबी समुद्र में सर, जो वो बजट भारत नहीं करने था वाला, उसके लिए। नहीं सर, फिर बजट कौन देगा? मैं दूंगा। सर, या आप बजट नहीं था देंगे? उसके लिए। सर, नहीं, बजट बजट नहीं। कौन देगा उसके सर? लिए- आप या मैं उसके दूंगा लिए सर? नहीं पर्यावरण विद ने अरे सुप्रीम कोर्ट अरे में केस किया अरे है। सर, नहीं, सर, कैलकुलेशन सरकार आपकी है, करेक्ट, सरकार मुख्यमंत्री आपकी है, देवेंद्र पर्यावरण फडणवीस सर, हाँ, बहुत हाँ, अच्छा हाँ, हुआ हाँ, आपने नहीं किया सर, बहुत अच्छा हुआ। वेरी फ्रैंकली वी वुड लाइक टू थैंक यू। उसके बजाय पांडे जी और सुरेश चंद्र राजन जी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के अलग अलग किले हैं उनको आप रेस्टोर कर दीजिए उस बजट से। correct. वील बी वेरी हैप्पी, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। सर। और साथ में स्टूडेंट्स के लिए वहां पे लाइब्रेरी बनाइए, वहां पर आप वो जो साउंड एंड लाइट शो वगैरह होते हैं वो सब बनाइए। और ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है आपके पास, ये भी आपको बता दूं, ये 1996 से 97 में ये प्रोजेक्ट मैंने बना करके दिया था सर सरकार को, अभी तक सरकार के पास पड़ा है। Great, इट इज कॉल्ड great, द छत्रपति टूर प्रोजेक्ट। इट इज स्टिल देयर सर। Great, और great. उसको एज अ बेस इस्तेमाल करके अभी भी आप कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं शैलेश पांडे जी और सुरेश चंद्र राजन जी, आपको यू विल अर्न मिनिमम $1 बिलियन फ्रॉम जस्ट टूरिस्ट अलोन। सिर्फ टूरिस्ट से आपको $1 बिलियन मिल जाएंगे सर, मैं आपको ये बता रहा हूं। इन एनी इवेंट जेंटलमैन, मुझे थैंक यू। लगता है No, I सरकार want को to इस just प्रस्ताव remind के you, ऊपर Suraj- सोचना चाहिए। जैसे पांडे जी ने यशस्वी फडणवीस जी ने सभी शिवाजी महाराज जी के गढ़ किल्लों को 300 से ज्यादा गढ़ किल्लों को संवर्धन करने का उसके लिए 500 करोड़ से ज्यादा फंड अलॉट किया है, जिसके लिए कई किलो पे काम शुरू हो चुका है। और सभी 350 से ज्यादा अधिक छत्रपति सर, शिवाजी सिर्फ महाराज 25 कालीन सिर्फ 25 की किलों- जरूरत है, 350 नहीं कर पाएंगे सर। वो दैट इज वेरी एम्बिशियस। वी ये वोंट बी बड़े बड़े एबल। फिगर गिनाते हमारी सिर्फ हैं। 25 बहुत है। सभी का संवर्धन और पुनर्निर्माण और नूतनीकरण हम करेंगे। सर, सिर्फ 25 बहुत है। और राजन जी, आप कांग्रेस राहुल गांधी जी को जननायक बोलते हैं, आपने आपने भी जननायक नहीं बोला सर। एक भी बार जननायक नहीं बोला जननायक नहीं बोला। अरे आज तो सर, राजू जी क्लास लेने बैठ गए भाई सभी बट थैंक यू जेंटलमैन, सर, थैंक यू वेरी सर, मच सर, सर। सर, अब ऐसा है, अब आप सबको ऑफिस में आना है, आपको यहाँ बैठ करके हमारे साथ चाय और समोसे खाने हैं। आप जी, जी, कृपा जी। करके इधर आइए प्लीज। बीके आप सिंह जी, आप तारीख नहीं बताते राजू जी, तारीख तो बताइए। सर बिल्कुल आपकी तरह हूं सर, आपकी तरह हूं बिल्कुल। लेकिन जल्द से आइए सर। आप तारीख बता दिया, सर, आपका ऑफिस निर्माण है। भी कर दिया सर, आपका ऑफिस है। उद्घाटन भी कर दिया। सर, आपका ऑफिस है, इट इज योर जी ऑफिस। जी जी, मैं तो आया था सर, आप आपकी तो आए मुलाकात थे। में हो गए। आप तो आ चुके के साथ में हैं। हाँ, सुरेश चंद्र राजन जी एक बार आ चुके हैं। बीकेसी में है पांडे जी, जब भी आए सुरेश चंद्र राजन साहब आए थे, आप भी पांडे साहब आइए प्लीज। मैं आता हूँ। थैंक यू वेरी मच सभी लोग आए जेंटलमैन। एक साथ तो और अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। नमस्कार। चलो, चलो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। जय थैंक यू, जय बहुत। थैंक यू। भारत माता की जय, वंदे भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव। थैंक यू। All right, that was nice. At the end of the day, I think Professor Prajapati got bored towards the end. I asked him, "Do you have to leave or do you want to Yeah, leave?" He said, "I want to leave." I think because he was not getting a word in edgewise. But it was basically the entire conversation was monopolized between Mr. Pandey and Mr. Rajan. So at the end. But Pandey ji was aggressive. I don't think प्रजापति जी कभी ऐसे पांडे जी के रूप देखे थे कि he is going to tell आप हमारे ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हो। no, but the fact is वो क्या है कि उस वक्त था मंडल और कमंडल के बीच में लड़ाई हो रही है, ये ऐसा हर जगह पर हर अखबार में आता था। हर अखबार की हेडलाइन होती थी मंडल और कमंडल के बीच में ये युद्ध हो रहा है। इस किस्म की भाषा का प्रयोग होता था उस वक्त, ऐसी कोई बात नहीं है। सो इट्स नथिंग न्यू। लेकिन जो भी है, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू द एंटायर जो आपके बोलने के बाद आफ्टर यू स्टार्टेड द एंटायर कालेलकर रिपोर्ट, the way he spoke, Prajapati ji, he gave a detailed description of the entire thing, including why Rajiv Gandhi had opposed it and then how it But turned out. they made a mistake. Let's be very clear. The Congress made so many mistakes. In fact, if the Kalelkar report had actually been accepted by Pandit Nehru and he had started the implementation at that time, we wouldn't have had this problem today. There would have been no problem. In fact, there wouldn't have been there would have been no need for a Mandal Commission report. Very frankly speaking, if the Kalelkar report had been accepted at that time. However, the Congress has learned from its mistakes, and one must congratulate Mr. Rahul Gandhi for the fact that the government has accepted the very concept of a caste-based census. So, congratulations to him. However, as far as retaliation with regard to Pahalgam is concerned, all of us wait. And I think the patience of the people is wearing thin. Patience. The people It's reached its up to the top limit. जी, अब तो लोग कह रहे हैं कि भैया क्या हो रहा है ये, आप जरा कुछ जल्दी क्या हम कीजिए। भूल भी जाएं कि आप कुछ करने वाले हैं? जी, दुरुस्त बात। मैं उम्मीद करता हूँ ज़रूर करेंगे।
and I'm sure they'll do it and they'll do it well. Right, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. और जैसे मैंने पिछली बार कहा था, पाकिस्तान का सैंडविच बनने वाला है साहब, क्यूकम्बर सैंडविच बनेगा, सलामी सैंडविच बनेगा, वो उनके ऊपर है। एक तरफ से अफगानिस्तान, एक तरफ से हिंदुस्तान, आगे पाकिस्तान जो मर्जी करे। I don't know if Pakistan will be around or not. The way But they were I think hitting- still they are very slow, because if the armaments has to reach Baluchis, it had to reach long back. If the armaments had to reach the Afghans, the Pathans, it had to be long back. I mean, even if you supply now, it takes months to organize and reorganize and get them on the offensive positions. Right, that's just about it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। That bell you can hear. Do subscribe to the channel. वो आप बोल रहे थे सर कुछ Irish clock The के बारे Irish में? clock, they strikes 30. And the fastest growing channel. Subscribe to the fastest growing Fastest growing channel in the Nation country. Now. Right, Nation Now. आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. भारत माता की जय। Bharat Mata Ki.